For this episode of Sushasana, we have with us a 1998 batch IAS officer of the UP cadre, Mr. Alok Kumar. Somebody with a very strong reputation of being a doer of delivery inside government. He's also currently the nodal officer for the $1 trillion economy agenda of the UP government. So in this episode, he talks about that. He talks about transforming the public distribution system in the state of UP. He talks about how the state managed COVID across the two waves. He talks about his days as a DM in different districts of UP. And also, he talks about his hobby of being a bird photographer. So do watch out in this episode of Sushasana. So Mr. Alok Kumar, a very very warm welcome to Sushasana. Sushasana पे आपका स्वागत है. You've completing your 1998 batch UP cadre IAS officer. So you're completing 25 years in service this year. So firstly, congratulations for that. आपकी silver jubilee हो रही है as IAS. Thank you so much, Gaurav, and thanks for inviting me here. You have a very very strong reputation. तो मैं जितने भी लोगों से आपके बारे में बात करता हूँ, before I even complete my sentence, the thing comes very good officer, very good officer. That's the thing I hear from anyone in UP, outside UP, anyone who knows you. And I think that reputation is built on the back of strong delivery. आप जिस भी posting में, जिस भी role में रहे, you really delivered things, and that's what kind of that reputation carries. So really looking forward to this conversation. We also have an opportunity. We are working together on one of the topics, which is family ID in Uttar Pradesh. उसकी बात करूँगा थोड़ा बाद में. Also, I want to talk about your tenure as DMs in different districts. So DMship के बारे में बात करेंगे. But before that, I want to focus on some of the things that you've done at the state level, your different roles here. In particular, उसमें I want to talk about एक तो health, because health is an area of interest for you. Health is an area of expertise for you also. You've also been part of the COVID management, all of that. So उसकी बात करेंगे. And talk about how you've kind of streamlined and transformed the public distribution system. The ration का जो पूरा system होता है UP में, that's something that is associated with you, उसकी बात करेंगे. But सबसे पहले, to begin with, I want to talk about one important responsibility that you have right now, where you are the nodal officer for the $1 trillion economy agenda of Uttar Pradesh. It's a very ambitious goal that the state has picked up कि 2027 तक, 2027 तक, you want to be a $1 trillion economy in the state GDP. तो सबसे पहले तो I'm curious कि ये गोल आया कहाँ से, मतलब how did this goal even get decided, because goal setting अपने आप में important वो है. How did this happen? गौरव, इसमें सबसे पहले 15 अगस्त 2019 को करेक्ट, तो उस दिन जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन एड्रेस डोनेशन को एड्रेस करते हैं, उस समय में उन्होंने स्टेट्स को भी और अपने लिए कंट्री के लिए टारगेट सेट किया था कि वी शुड स्ट्राइव टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25. उन्होंने ये चीज़ बताया कि लाइक फ्रॉम 2014 to 2019 we have added $1 trillion to our national GDP, and we should strive to like add $2 more trillion to in next 5 years. So उन्होंने स्टेट्स को जो मोटिवेट किया और स्टेट्स को जो एग्जॉर्ट किया कि जो स्टेट्स इसमें आगे आ सकते हैं, लाइक तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इसको काफ़ी चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और $1 ट्रिलियन का कि यूपी स्टेट को जब तक कि कंट्री 5 ट्रिलियन के लिए एम कर रहा है, देन वी शुड ऑल्सो एम फॉर 1 ट्रिलियन फॉर मेकिंग our state a $1 trillion economy. So this is how it got picked up. Yes. Flew from the national goal set by the Prime Minister. The CM said we want to contribute 1 trillion to that national goal. Acha. So now where we stand today, usme, how would you explain the strategy to get to that 1 trillion? Also, I think almost tripling the GDP, right? So उसकी अगर broad kind of contours of the strategy की बात करें, I'm sure initiatives बहुत सारे हो रहे हैं उसके अंदर. But strategy क्या है? What are the focus areas which you believe will help us get there? Which the state believes? In a task, though, this is quite challenging, and like people saying कि हाँ कई बार economists से भी आप बात करेंगे तो unachievable, किसी भी state ने या किसी भी country ने ऐसा achieve नहीं किया है. तो this is like 4 times increasing our GDP by 4 times in 5 years, and we have to get more than 30% rate where we have to grow by more than 30%. तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज लगता है कि और ऑफ कोर्स किसी भी स्टेट ने इस तरह का अचीव नहीं किया है. लेकिन
जब भी किसी ने अचीव किया होगा। और थैंकफुली अभी जो और ऑनरेबल सीएम हैं, उनका एक सोच रहती है, अगर किसी स्टेट ने अचीव नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि हम क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं, वी कैन बी द फर्स्ट वन। और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी पे भी जो सपोर्ट है, चीफ सेक्रेटरी सर भी हमारे उसी तरह से, तो ये है अब उस चीज़ के लिए जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट अप्रोच लिया कि लाइक वी हैव टू हायर ए ग्लोबल कंसल्टेंट जो कि हमें इस चीज़ में रोड मैप तैयार करने में, एंड उसको इट्स नॉट ओनली प्रिपेयरिंग द रोड मैप, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए किस तरह से हम लोग माइलस्टोन सेट करके फिर उस माइलस्टोन्स को हमने अचीव किया कि नहीं किया, तो उसके लिए वी हैव हायर्ड Deloitte. So this was again a long exercise. It took us 4-5 months, but after selecting from some big names, we have finally we have selected Deloitte, and they are now with us. They are helping us prepare the roadmap. तो रोड मैप में हम लोगों ने करीब जो ऑल सेक्टर्स, क्योंकि अब जो रोड मैप प्रिपेयर करना, अगेन दिस वाज नॉट ए वन डे एक्सरसाइज, इट अगेन टुक अस अराउंड 6 months, जिस क्योंकि हर सेक्टर के बारे में यू हैव टू टॉक टू ऑल स्टेक होल्डर्स से, अगर एग्रीकल्चर में या किसी भी हम पार्ट में बात करें तो सारे कंसल्टेटिव प्रोसेस बेसिकली वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके। इस रोड मैप में से अब निकल के क्या आ रहा है, व्हाट इज द की अब जो उसमें जो की एलिमेंट जो मेनली आ रहा है कि हमें फोकस करना पड़े जो हमारा स्ट्रेंथ है। वी नो कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट है, वी डोंट हैव पोर्ट्स, तो हमें उसी तरह से इंसेंटिव्स भी ये करने होंगे, और हमें फिर सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है दैट इज एग्रीकल्चर, वी हैव वेरी फर्टाइल लैंड, तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर एक हमारा बिल्कुल फोकस होगा कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि आज के डेट में हम लोग मिल्क देखते हैं और एग्रीकल्चर देखते हैं, जैसे सपोज मैंगो है, तो अगर मैंगो का जो एक्सपोर्ट्स में जो हम कंपेयर कर सकते हैं तो लाइक यूपी कैन बी द नंबर 1 producer of mango. So food processing is a big focus. Food processing plus export, like getting export, like getting the best value out of our produce. तो ये चीजें होगा फूड चेन में, ये चीजें हैं। उसके अलावा फूड के साथ just staying with this before you come to other elements, इसको करने के लिए what are the kind of things that you the state will need to do to kind of make food processing a big priority and to kind of focus on इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि हर सेक्टर में we have come up with our own like investment policy to attract investors. तो फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोगों ने वो चीज़ें किया है, और जो क्रॉप को किस तरह से डाइवर्सिफाई करके जो हमारे बेस्ट जो डिमांड है आज के डेट में मार्केट में फूड की, जो प्रोसेस्ड फूड की, उसको किस तरह से हम लोग स्टडी करके ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, तो उस तरह से हम लोग फोकस कर रहे हैं कंप्लीटली, जिससे कि हम इसका इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स दोस क्रॉप्स व्हिच आर कंड्यूसिव फॉर प्रोसेसिंग एंड हाई यील्डिंग क्रॉप्स, तो उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जैसे कि कई और सेक्टर हैं जिसको कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ दोज, क्योंकि टेक्सटाइल अगेन लेबर इंटेंसिव, और तो अभी हम लोगों ने एक PM मित्रा पार्क योजना है, जिसमें कि हम लोगों ने लखनऊ के बहुत पास में एक लोकेशन है मोहनलालगंज में, उसमें सेलेक्ट किया है 1000 एकड़ लैंड में केवल टेक्सटाइल पार्क डेवलप किया जाएगा। तो टेक्सटाइल वुड बी वन ऑफ द फोकस एरिया। उसके अलावा जो हमारा IT इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, अगेन लेबर इंटेंसिव बेसिकली, यस लेबर इंटेंसिव। और जो हमारे यहाँ पे जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं, कॉलेज, एकेडमिक, IITs हैं, हमारे पास 2 IIT हैं, IIMs हैं, कितने IIITs है, IIT लखनऊ में है, प्रयागराज में है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स टैलेंट है, अल्टीमेटली जब उन्हें मार्केट में जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए द गो टू द southern part of our country. So why not जब after COVID we know कि working from home and this has become a trend. तो micro centers, कई ऐसे IT firms भी हैं who are now opening up micro sites. तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ we have to leverage this strength of ours. So what I'm hearing is second, so one is food processing, second is which is a strength, agriculture is a strength, then is labor intensive industries, textiles being an example, and they are again setting up this park and other things. Third, you're saying the एक और theme is कि how do we kind of maybe retain the talent in the state as opposed to getting them to go to a Bangalore or a kind of Gurgaon and so on. तो उसके लिए IT being a focus and what are the kind of things IT के अलावा if I can add apart from IT like pharma है, pharma part. तो pharma again we are seeing a big opportunity because through Global Investor Summit I was also part of the team. We visited Hyderabad, many other cities. So we see an opportunity in pharma business also. We are a big market also. So वहाँ पर भी opportunities हैं. और इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो वी आर ऑल्सो
trying to attract investors to Acha. invest in these fields also. जो upcoming basically Upcoming, things are like EV, yes. that's where you want. And overall अगर देखा जाए कि इसको पूरा how, because if we are on this path, so there will be huge skill requirement which will not be related to just one sector, across the sector. So basically you're saying one is around playing on the strength, which is agriculture and food processing from that. Second is focus on labor intensive industries like textile, and usme Yes. explain how the park and other things. Then the third thing is also somewhere wanting to retain the talent from UP in UP as opposed to letting them go to a Bangalore or a Gurgaon and so on. Also, you're saying IT is one sector where that is a possibility. Are there other sectors? Yes, apart from IT, like we are also focusing on pharma business because like as a part of our GIS team, I got the opportunity and we went to Hyderabad, few other places also. So UP is a big market also for pharma, Yes. and we have very good like CSIR institutes. So we are focused on pharma business also, how to increase and how to bring companies who are working in pharma. उसमें policy changes भी होंगे. For policy changes, we have our we have come up with our own pharma policy, and like before we are finalizing any policy, we are benchmarking it with other states, what the other states are giving, and what can we offer, and we are also talking to the investors also because like what exactly they want. अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं like these focused areas, तो स्किलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. So we are also focusing on how do we increase our there is a huge as we know, okay, there is a huge demographic dividend. Like we have our state is the most young estates compared to all other estates or most of the countries also. So we have to leverage again on those strengths. तो स्किलिंग के लिए ऊपर भी बहुत फोकस होगा. न्यू एज कोर्सेज में किस तरह से हम लोग उनको स्किलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, so that कि not only in a state, not only in our state, if they can go to other countries, if they can work there. So this all of these things, all of these initiatives will ultimately boost our state economy. Any focus on upcoming industries? जैसे मतलब pharma is more kind of getting the thing from other states to here or expansions here, but anything on? Yes, like electric vehicles also. Electric vehicles, electric vehicles one of the focus area होगा. उसके अलावा जो renewable energy में green hydrogen के लिए भी we are coming up with our own green hydrogen policy. अच्छा. हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अपकमिंग एरिया जहाँ पर कि वी फील्ड इज वाइड ओपन. हाँ, you can be the front runner if you. तो उस तरह की चीज़ों में भी असेंबलिंग में ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तो लाइक यूपी इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन इंडिया. सो उनको किस तरह से हम लोग और यूज़ कर सकते हैं. तो 4-5 चीज़ें अगर मैं इसमें से निकालूँ अगेन रिकैपिंग. सो एक तो आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे फोकस बिकॉज दैट्स द कोर स्ट्रेंथ. Yes. उस पे हम फूड प्रोसेसिंग पे एंड एक्सपोर्ट्स पे उधर फोकस कर रहे हैं. Second is again labor intensive industry because that's how employment generation also happens. Textile being an example there. Then you're saying pharma is a big focus in changing policy, benchmarking policies, changing rules, incentives to get pharma attracted, pharma companies attracted in the state. Then there's a whole focus on new upcoming industries like electric vehicles, like hydrogen, green hydrogen. You're saying so ये सब जो भी जहाँ पे space is open and you can be the front runner there and to enable all of this skilling. And one of the thing which I was missing is tourism. Tourism. Yes. That's, So tourism may you know about Ayodhya and people from all over the country they are showing interest in Ayodhya. So tourism may again we will be investing and we will be focusing much more on tourism. हमारे पास बुंदेलखंड एरिया में भी कई फोर्ट्स हैं. Yes. और कई वाटर बॉडी हैं जिनको कि अभी तक हम लोगों ने उतना उनको लीवरेज नहीं किया है. तो उनको भी हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग एक सर्किट के रूप में एक होलसम टूरिज्म एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं. tourism में तो काफी सारा there's a lot of cultural tourism. All of these circuits are getting developed. Yes. All of the corridors getting developed. So all of that is a huge potential there. Also, that tourism is something that gets more bang for the buck in terms of so it generates more employment. It kind of helps this. Yeah, tourism is generally also visible more publicly in terms of what's happening. Got it. So आपको, as you said, it's an ambitious target, right? It's not easy. It's not happened in the past. It's something that the kind of we put a stick in the ground and saying we want to get there, and then this entire government is striving toward that. All the people have to come together for it. But what gives you hope? मतलब आपको क्या इसमें ऐसे वो चीज़ लगती है कि ये सब gives hope कि हो सकता है? And ऐसी what are the things that you feel are risks
or kind of which can come in the way of getting there and therefore need to be managed? जो होप की मैं बात करूँ तो दो तीन चीज़ें हैं जो सबसे टॉप पे जो पॉलिटिकल विल होता है, दैट इज देयर एंड दैट इज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर स्टेट. लाइक आई हैव आल्सो वर्कड एज दिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. हम लोग कभी भी we are never focused on such kind of thing that how do we build, like how do we think our district as an economy and how do we like improve the status of our district's economy. So this is the first time this is Completely happening. agree. That's the most critical part. Exactly. And वो जो इसलिए जो पूरे CM साहब का हमारा support है, and through Chief Secretary, like I'm also Principal Secretary Program Implementation. So every week we hold a VC, a video conference with all our district magistrates under the chairmanship of Chief Secretary. So every week or alternate week, we are pushing them to present some best practices on how do they feel that how can their district's economy can be improved. तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, like agriculture में, fisheries में, first time that they are presenting on fisheries, how do they are presenting on how किस तरह से काला नमक चावल या किसी और चावल की उन्होंने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया. वी आर गिविंग देम लाइक दिस फिगर्स अबाउट कि कहाँ पर कितने फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे विच आर द लैगर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है. सो दीज थिंग्स इफ़ यू कीप ऑन टॉकिंग विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, so you know like they are the most critical elements of our governance. So एक बार उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, they have to get this done and it is being reviewed. तो बहुत अच्छा. So I would say कि top level से जो support है from the chief minister, that's translating to the bureaucracy and it's just becoming an agenda. So ये चीज़ है. और दूसरा अगर हम अपना बेस देखते हैं तो we are starting with a very low base. तो maybe once we reach to some level तो फिर उसके बाद ग्रोथ करने का चांस थोड़ा मुश्किल रहता है. हाँ, ये होता है, प्लेटू होगा. बट अभी आज के डेट पे तो हमारे पास बहुत ग्रोथ करने का स्कोप है, क्योंकि हमने अपने पोटेंशियल को, ऐसा लगता है कि हमने अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है. सो दीज आर द होप्स जहाँ पर कि हमें लगता है कि यस वी कैन अचीव दिस which is being considered unachievable by. बहुत वाइड स्पेस है तो you can really run fast. कहीं ना कहीं जाके then becomes tricky. Every 5% growth is a difficult growth to get. So वो है. और जो वहाँ पे चैलेंज की ये बात है कि सस्टेनेबल किस तरह से हम लोग इसको क्या, बिकॉज एक ग्रोथ पाथ पे हम लोग जा रहे हैं. देयर विल बी, वी मे फेस सम हर्डल्स. इट्स नॉट कि केवल अपने स्टेट से ही मतलब है, ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं, ग्लोबल चैलेंजेस भी होंगे. वी नो वी एवरीडे वी कीप न्यूज़ अबाउट सच थिंग्स. तो वो चीज़ें हैं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर. एग्जैक्टली, कि उसको हम किस तरह से मैनेज करें. हाउ डू वी अगेन जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उनको भी किस तरह से सबको हम लोग साथ में लेकर के चलें. वो किस तरह से ये चीज़ें करना होगा. एंड लाइक वी हैव टू कीप दिस मोमेंटम गोइंग. सो दिस मोमेंटम आज के डेट में वी आर सीइंग दिस मोमेंटम, वही आगे मोमेंटम ये. तो वो जो एक रिस्क की बात है, इफ़ वी कैन कीप ऑन दिस मोमेंटम, वी रिमेन फोकस्ड, तो इट इज़ अचीवेबल. Managing externalities, keeping the momentum and managing the regional differences. Apart from regional imbalances, Gaurav, like जो strata है, like upper class, middle class, lower class. So we have to take everyone along with this if we want to get like the complete support from the public also, and this is very much needed. This is not just a government thing. The government is an enabler here. Ultimately, economy is a lot of what's happening in society. Very true. Very true. All the best for this. I think it's an ambitious goal. It's a worthy goal, is what I'll say. And all efforts, no effort is kind of more on this path. So all the best for that. अब कुछ और चीज़ों की बात करते हैं. You've kind of already मतलब things have happened and you've been so. Let me start off with let me talk about your tenure as Commissioner Food and Civil Supplies, where you really overhauled the way the ration gets distributed across the state, and that's been extremely impactful. तो पहले तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये बताइए कि व्हाट इज द राशन स्कीम एंड पहले कैसे होता था, व्हाट वाज द चैलेंजेस इन द वे इट वाज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड फॉर डिकेड्स. तो एक बार इफ यू कैन ब्रिंग दैट टू लाइफ, देन हेल्प अंडरस्टैंड द रिफॉर्म आल्सो बेटर. सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट पीडीएस, लाइक वी नो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जब हम लोग वी लाइक व्हेन वी वर यंग, तो उस समय में भी राशन कार्ड जो
हर घर के लिए ऑलमोस्ट एक आइडेंटिटी की तरह होता था, यू हैव टू हैव ए राशन कार्ड। और उस समय गवर्नमेंट से ये चीज़ नहीं था, APL BPL, लाइक पीपल यूज टू हैव राशन कार्ड, जिसमें कि आप गैस सिलेंडर से लेकर के और गेहूँ चावल आपको सब मिलता था। स्लोली वो हमेशा रिवैम्प होता रहा, ये चीज़ें होता रहा, कभी स्केलिंग ये चीज़ हुई कि किन्हें टारगेटेड, फिर देन वी केम अप विद टारगेटेड TPDS, लाइक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर BPL APL का कॉन्सेप्ट आया कि बिलो पॉवर्टी लाइन एंड देन अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन पीपल विल हैव टू पे मोर, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल विल हैव टू पे लेस। जो आज के डेट में सिस्टम चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो मैं उसको उसी पे आऊँगा कि we are providing like almost in rural areas 79% of the population are getting benefit of this PDS scheme, or urban areas में almost 50%. So there is a huge population which is getting covered under this. It's fair to say that a large part of the population is still dependent on the PDS system for their nutrition and food needs. Yes, of course. And मैं बताऊंगा अभी कि कोविड टाइम में भी क्या रहा। तो PDS सिस्टम में एक जो अभी हम लोग पर यूनिट, लाइक पर फैमिली मेंबर, थोड़ा स्केल अलग होता है वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में, डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स। लेकिन मोस्टली कि 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, उसमें थोड़ा राइस 2 kg में भी and 3 kg of wheat, depending upon the reason which you 5 kg per family 5 kg per family member per month. So if you are a family member of 4, then you would get 20 kg of food grains every month, and you are paying just like 1 or 2 rupees per kg. So this is nothing like compared to the cost which we incur. So and greens के अलावा is there something else also that goes टाइम टू टाइम, जैसे टाइम टू टाइम उसमें और चीज़ें भी ऐड होती हैं। जब जैसे कि क्राइसिस होता है तो उसमें दाल भी ऐड हुआ, तेल भी ऐड हुआ, नमक भी ऐड होता है। बट जो रेगुलर वे में है वो दिस आर लाइक वीट एंड राइस, ये चीज़ें होता है। और जो कोविड टाइम में, जैसा कि मैं बता रहा था, बिकॉज लाइक कोविड टाइम में लाइक पीपल वर फेसिंग ए मेजर क्राइसिस और ये चीज़ें प्रॉब्लम थी, तो उसको हमें इस स्केल को पूरा डबल किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू इस स्केल को डबल किया गया था। तो PDS में लाइक ऑलमोस्ट 70-75% हमारे यहाँ का पॉपुलेशन, इफ आवर्स इज यूपी के पॉपुलेशन 24-25 करोड़ है, मोर देन 15 करोड़ पर्सन आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस PDS। पहले जो सिस्टम था, मैं अगेन नाउ आई एम कमिंग टू चैलेंज, जो पहले जो सिस्टम था उसमें ये चीज़ था कि एक रजिस्टर हुआ करता था मैनुअली, उसमें वो कोटेदार उसको कहते हैं, जिसके पास गवर्नमेंट सप्लाई करती थी, फिर वो ब्लॉक से उठाता था, जो ब्लॉक गोडाउन है वहाँ से उठाता था, फिर वो ले जा करके, तो कई बार इश्यू होता था कि वो गांव में ले ही नहीं गया और उसने ब्लॉक गोडाउन से ही, कोटेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्लॉक गोडाउन से उठा के फेयर प्राइस शॉप जो है वहाँ पे, जो उसका अपना फेयर प्राइस शॉप है, उसकी अपनी दुकान है, वहाँ पर लाए और लोगों को वो वहाँ से प्रोवाइड करें। कई बार ऐसा होता था कि चूँकि मैनुअल रजिस्टर था तो आप जाँच कर रहे हो, फिर किसी ने कंप्लेन भी की, तो उसको फिर पूरी तरह से असेस कर पाना, क्योंकि जब ये चीज़ कोटेदार का दबाव होता था, प्रभावशाली आदमी होता है कोटेदार अपने यहाँ का, तो उसके दबाव में कई बार लोगों ने कंप्लेन किया, बाद में ये चीज़ करके दे वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं। देयर वाज नो सिस्टम, नो एविडेंस। सो बेसिकली देयर इधर या तो ऐसा भी हो सकता है कि दिया ही नहीं, मिला ही नहीं राशन, या मिला पूरा अपने ब्लॉक गोडाउन से ही उसने ब्लॉक गोडाउन से ही उसने ब्लैक, वहीं से ब्लैक कर दिया, बेच दिया। या फिर जो अगर सपोज अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से 500 को दिया, 500 को उसने नहीं दिया, उनके अंगूठे लगा लिए। अब देयर वाज नो मेथड कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कि अंगूठा किसका है। आप तो इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस थे, मगर थैंक्स टू दिस डिजिटाइजेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आधार, तो उसके बाद जो हम लोग यहाँ नया 2017 में आई ज्वाइंड एज फूड कमिश्नर, तो उस समय में हम लोगों ने उसको टेंडर आउट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोगों को सपोर्ट था, वहाँ से भी हमें ये मिला। तो हम लोगों ने पॉस मशीन, लाइक दैट वाज पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। अब पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस में यस ई-पॉस, वी कॉल इट ई-पॉस। वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग कहीं पर अपने शॉप में जाते हैं परचेस करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस, बट दिस कम्स विद अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टूल ऑल्सो। वहाँ पर ऑल दीज फिंगर्स, लाइक जब हम आधार बनवाते हैं तो ऑल आवर फिंगर्स गेट कैप्चर्ड एंड दीज आर स्टोर्ड इन UDI सर्वर। तो उसमें अब थ्रू दिस पॉस मशीन आपके घर में कोई भी 4 or 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, सो एनीवन कैन गो
and through his finger and through this command like he can take the ration. और the moment he takes the ration, जब सबसे पहले जो finger लगाने के बाद it gets authenticated through UIDAI server, और जब authenticate होने के बाद ही once it is verified that yes इनका नाम दर्ज है और ये नाम है इनका, तो उसके बाद वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करता, और उसी समय में ये लॉग भी आ जाता है हमारे पास कि कितने बजे किस फैमिली मेम्बर ने उसको राशन लिया है. सो लाइक फॉर इंटायर वी हैव 3.6 करोड़ फैमिलीज एंड 15 करोड़ इंडिविजुअल्स. तो हर एक फैमिली जो राशन उठाती है तो वी कैन फाइंड आउट कि किस डेट में उन्होंने और किस टाइम पे से 10:15 पर अगर किसी ने उठाया है तो कितने बजे राशन उठाया है, ये चीज़ पॉसिबल था. अब इस पूरे एक्सरसाइज को करने के लिए दिस वाज नॉट ए सिंपल टेंडरिंग एक्सरसाइज, आपने कर दिया हो गया. So basically just explaining the process. So somebody comes, वो अपना राशन कार्ड नंबर बताया, all of the Aadhaar of every family member is there in the system. Yes. Any of the family, you say okay I'm this family member. हाँ. On the first जब वो आधार राशन कार्ड नाम ये करने से उसके फैमिली के डिटेल्स सारे आ जाएंगे. Select which family member you are, you give your thumbprint, then get real time authenticated through Aadhaar. So that means your authentication happened, you're the right beneficiary. Yes. And then you kind of take the ration. इसमें ये वाला एक जनरली kind of asking कि कोटेदार का वो प्रेशर कि आपका ऑथेंटिकेशन तो ले लिया लेकिन आपको राशन नहीं दिया, ऐसा दैट इज इतना भी वो नहीं है. नहीं इतना आसान नहीं होता है. देखिए सबसे पहला जो हमें इसमें चैलेंज था, सबसे पहला चैलेंज तो हमें आधार, क्योंकि जो भी सारे फैमिली मेम्बर्स थे उनके कई भी राशन कार्ड में आधार कलेक्ट नहीं हुए थे. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे 15 करोड़ का आप आधार लो और आधार योर नेम एंड आधार शुड मैच, देन ओनली सबसे पहले इसको आधार ऑथेंटिकेशन कहते हैं. तो ये जब आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब उसका तो पूरे कंप्लीट 15 करोड़ का दैट वाज अ बिग चैलेंज. मगर हमारी जो फील्ड लेवल पे फील्ड पूरी टीम थी तो उन लोगों ने इसको ये किया, एंड नाउ वी हैव लाइक 15 करोड़ आधार वैलिडेटेड डेटा इन आवर रिकॉर्ड्स. द सेकंड चैलेंज वाज the resistance from the Kotedar. Authenticated is all kind of Aadhaar authentication has to happen for all 15 crore. All 15 करोड़. तो massive operation. हाँ, और उसके बाद जो चैलेंज था, द नेक्स्ट चैलेंज वाज कि कोटेदार की तरफ से देयर वो ऑफ कोर्स देयर वर रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले से जो एक सिस्टम चला रहा था यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन है, कोई ये नहीं है कितनों को दिया कितनों को नहीं दिया. नाउ एवरी डे यू आर मॉनिटरिंग देम. हर दिन आपको पता है कि उसके पास इतना बैलेंस होगा, इतना उसने बेचा है, इतना शो कर रहा है. रियल टाइम बेसिस, लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर देम. तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कि अंगूठा मैच नहीं कर रहा है, दिस इज गिविंग एरर, ये वजह. हम लोगों ने फिर उसके बाद हाउ मेनी फेयर प्राइस शॉप्स इन यूपी टोटल कितने 80,000 ये नेटवर्क ऑफ पीपल है हु आर रेजिस्टिंग इन सम. यस. फिर हम लोगों ने अंगूठा नहीं लग रहा है तो वी यूज लाइक, मैं खुद भी जा करके अच्छा चलो देखते हैं, यू हैव 10 फिंगर्स, ठीक है. और ये चीज़ें होता है कि मजदूरी जहाँ पर लोग करते हैं गांव में वहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट्स भी हाँ. लेकिन फिर हम लोगों ने आयरिस भी ये चीज़ किया. तो ऑल आवर अर्बन सेंटर्स हैव लाइक ऑल अर्बन एंड रूरल सेंटर्स ऑल्सो वी हैव आयरिस स्कैनर भी. अच्छा. तो अगर फिर ये चीज़ हुआ कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आयरिस स्कैनर तो काम करेगा. तो धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया और अब मोस्ट ऑफ लाइक आयरिस स्कैनर की इमेज बहुत लेस देन 1% केस में ही पड़ती है. In like it was more a bana, it was more a pushback. So इसलिए इसमें ह्यूज सेविंग हुई और हम लोगों ने कई घोस्ट बेनिफिशियरीज उन सबको भी वीड आउट किया, क्योंकि जिनका आधार कलेक्ट नहीं हो सका, दे वर नॉन एग्जिस्टेंट. किसी के भी रैंडम अब अपने फैमिली मेंबर में आप 2 नाम ऐड करके, सो वी गेट लाइक वी कुड सेव thousands of crore rupees and through this complete exercise. और सबसे बेस्ट पार्ट ये चीज़ थी कि लाइक यूपी में जब कोई भी चीज़ हम लोग एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो एज आई वाज मेंशनिंग कि बहुत रेजिस्टेंस होता है, बट जिस डेट से हम लोगों ने पॉस मशीन इम्प्लीमेंट किया था, विद इन 6 months वी कुड अचीव 93% डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दिस आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. उसके पीछे पूरी एक्सरसाइज थी कि किस तरह से हम लोग एवरी डे वी यूज टू ट्रैक कि फर्स्ट 15 डेज में कौन कौन से ऐसे फेयर प्राइस शॉपकीपर्स हैं जहाँ पर कि आधार ऑथेंटिकेशन बहुत कम हुआ है. क्योंकि इनिशियली हम लोगों ने प्रॉक्सी भी अलाउड किया था कि अगर जिनका आधार ये नहीं हो पा रहा है तो वी वुड अलाउ देम ए सेकंड चांस कि दूसरे किसी और आई कार्ड से.
स्लोली हम लोगों ने प्रॉक्सी का There's a change management process. We yes, you don't yes. make it mandatory because अगर for some reason नहीं हो रहा है, you don't want to deny ration to that family. Yeah, but you have other needs. But इससे इनिशियली हमने 5 days में प्रॉक्सी अलाउ किया था. So slowly we started cutting it down from 5 days to 4 days to 3 days. very important. This change management in any such big transformation is important. You have an end solution, you have a starting point which is poor, you have an end solution which is ideal, but वो point A to point B is all not one झटका Yes, because yes, kind of yes. give और एक और चीज़ गौरव जो अभी आपने पूछा था कि किस तरह से आप ये अवॉइड करोगे कि उसने दिया कि नहीं दिया. तो एक और लोगों ने एक और तरीका ढूंढा, कुछ कोटेदारों ने, कि अपनी मशीन को पूरे के पूरे गांव में घुमा दो और लोगों के पहले अंगूठे ले लो और उनको कह देंगे कि हाँ अभी तो अंगूठा लगा दो और फिर जब आएगा दुकान पे आ जाना तब रेला. इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने उसको जियो फेंस भी कर दिया. लाइक पॉस मशीन को भी हम लोगों ने जियो फेंस किया है कि यू कैन नॉट मूव दिस फ्रॉम योर शॉप अप टू मोर देन से 50 मीटर और सो. तो उसके कारण से वो उसके घुमाने के, तो इसलिए चैलेंजेस आते हैं वेन एवर यू. लोग इतने भी वो नहीं है कि वो वहाँ पे जाएंगे भी अंगूठा लगाएंगे भी और बिना लिए आ जाएंगे. इतना तो क्योंकि देयर इज लाइक पूरा पब्लिक का प्रेशर. बट इंडिविजुअल्स के अगर आप जा करके गांव घूम करके फिर वो चीज़ बहुत आसान है. सो देयर वर हर्डल्स जिसको कि हम लोगों ने अवॉइड किया. बट नाउ लाइक फॉर 4-5 years and particularly during COVID times, this was a major relief to people. अगर ये पहले नहीं होता कोविड से then you तो kind of बहुत not able to बहुत provide मुश्किल होता. It would have been very difficult to ensure कि लोगों को राशन मिल रहा है. This is, do you believe that this has been the most kind of directly impactful thing that you've, at scale, and that scale that you've been able to do? Yes, of course, Gaurav, but I also know that like you would now ask me about my experience as a mission director, because you know कि like health, in health you have a very long gestation period. I'll come to health. इसमें this is also something that's happened across the country, like this EPOS system, because I remember many years back, around 7-8 years back, we first were piloting it in Kerala as some part of the work that we're doing. So it's a system that's now omnipresent, I think, across the this thing. UP was one of the states that did it later, so earlier. No, it was somewhere in the middle. I would not say, but when we did it, then we like very soon we reached on one of the like top performers. Because it is assessed based on the how many, what is the percentage of people who are getting it through POS and through Aadhaar authentication. So it was it was efficient and fast implementation. It was not the first. अब ये एक और चीज़ है, which is one nation, one ration card. So if you could also explain that concept and how it benefits, it kind of helps when you move from one place to another and so on. But if you can explain that, and where is that right now in terms of implementation? One ration, one card, like जब complete, like you completely digitize all your beneficiary list. उसके बाद अगर आपने connect कर लिया, like all state gets connected at the national level. तो अगर मैं suppose if I am a migrant worker, if I am मेरी family registered है say in आजमगढ़, और मैं आजमगढ़ में मेरी फैमिली है, एंड आई एम वर्किंग लाइक पार्ट ऑफ माई फैमिली हैज़ मूव टू लाइक महाराष्ट्र एंड आई एम वर्किंग इन से मुंबई. तो उस केस में अगर मैं गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी, बिकॉज क्योंकि सारे के सारे डिजिटाइज हो जाने के बाद वो सारे स्टेट्स जो कि डिजिटाइज हो गए थे, वो तो दैट वाज एक स्टेप वाइज प्रोसेस, मगर आज के डेट में तो सारे स्टेट डिजिटाइज हैं. तो मैं वहाँ पर भी राशन ले सकता हूँ, क्योंकि द सेम वे पॉस में जब मैं अपना ये चीज़ें करता हूँ, आई एंटर माई राशन कार्ड नंबर, सो देन इट कैन पिक कि मैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ. और बिकॉज सिंस एवरी थिंग इज़ लिंक एंड इट इज़ रियल टाइम, तो मैंने वहाँ से राशन नहीं उठाया है. द पॉस मशीन एंड द डेटा कुड रीड कि हाँ मैंने वहाँ से राशन अभी नहीं लिया है. तो इसलिए देन इट बिकम्स वन नेशन वन राशन, कि आप कहीं से भी किसी भी जगह पर राशन ले सकते हैं. Your ration shop, you can go to any digitized ration shop across the country, and you can also take part. You can say कि मैं 25 किलो अगर मेरी फैमिली का है, मैंने 5 किलो लिया, 5 किलो लिया, तो ये पॉसिबल है. वो बाकी 20 किलो नहीं. तो इससे 2-3 तरह के फ़ायदे हुए. एक तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनका बहुत फ़ायदा हुआ. दूसरा फिर जो एक स्ट्रेंथ जो है, पब्लिक्स एम्पावरमेंट है, क्योंकि पहले जो बैलेंस अगर आप कहा जाए, तो बैलेंस वॉज इन फेवर ऑफ कोटेदार, जो कि बिकॉज ही इज द पर्सन हु डिसाइड्स कि मैं कितना दूंगा क्या दूंगा. आज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस कोटेदार, दिस पर्सन, तुम्हें लगता है कि आप अगर जा रहे हो, आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, तो यू नो एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा कोटेदार है जो कि सही राशन देगा, तो आपने वहाँ से ले लिया. So it also, in that sense, it's some competition amongst the fair price shops, where to say you have to provide the service well, then people will come. Otherwise, they have the option of going to another place, which was not there earlier. Exactly. In fact, मैंने इसका next level भी मैंने ये चीज़ किया हुआ था
कि why not, like our next step should be or would be like choose your ration shop. Because ये जो भी portability है, this is a temporary thing. Like you keep on, like there is no database, there is no मतलब कि we have given them this flexibility, this discretion कि वो portability है, he can take the ration from any shop. But the next level should be कि हमने अपना खुद राशन शॉप डिसाइड किया. तो ये मैंने अपने स्टेट में वी आर ट्राइंग कि हाँ टू हैव दिस थिंग. Sorry, how is it different from the flexibility? आज एक flexibility आज अगर आज मैंने अपने, क्योंकि फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत हमें उसको मैनेज करने में होती है, क्योंकि किस राशन दुकानदार से लोग कितना लेंगे, estimation. ये एस्टिमेशन की प्रॉब्लम है. वंस आई एम डिसाइडेड कि मैं This is my primary ration shop, and that is also not by my geography. I can choose. आई कैन चूज. So then तो there is- एक बार मैंने चूज कर लिया तो लेट मी चूज माई राशन शॉप. सो दिस इज दिस शुड बी द नेक्स्ट एजेंडा. मुझे लगता है कि जल्द ही ये भी इम्प्लीमेंट होगा. सो लाइक एम्पावरिंग पीपल, दिस इज ऑल एम्पावरिंग. This is very good, and good that you explained it in so much detail. So it's clear कि exactly changes कैसे हुए, and of course it's happening across the country now. It has happened across the country. Great. अब health पे आते हैं. Health is an area of interest for you. That's where you've kind of worked a lot. You've been mission director NHM, National Health Mission, which is also, you're also Secretary Health. Yeah. By the virtue of that, you've been there. You've been part of the core team of IAS officers which are managing COVID during the pandemic. And also you have your masters from King's College. वहाँ पे आपका thesis भी I think is on Yes. health systems and universalization of health. तो हेल्थ पे बात करते हैं. सबसे पहले तो इन योर रोल एज मिशन डायरेक्टर NHM, दैट्स द प्राइमरी काइंड ऑफ critical kind of posting in a state where you can drive a lot of things in health. And I know you've done many things there, a lot of things that I've come across that have been initiated by you. But what are your top 3 most satisfying interventions that you did as mission director in NHM? उसके बारे में बताइए. Top 3 जो आपको सबसे ज़्यादा satisfaction देती है. Yeah. As you said, like कि before I started as mission director, जब मैं किंग्स कॉलेज लंदन से मैं करके आया था, तो एज यू ऑल्सो मैंसन कि काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जब डिस्ट्रिक्ट में ही था. मैं तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था रूटीन इम्यूनाइजेशन को इंश्योर करना, ये देखना कि किस तरह से ये चीज़ें हो रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फील्ड में, लोगों से में क्या रजिस्टेंस है, और या नॉट पीपल फोर्थ कमिंग कि हाँ क्यों नहीं वो अपने बच्चों को इम्यूनाइज करने या इसमें ये करते हैं. सो यहाँ पर आने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर लाइक फर्स्ट विथ all states have this AIDS development society which is again like headed by a IAS officer. तो मैं UP AIDS UP SAC कहते हैं. स्टेट से मतलब सारे स्टेट में जो हमारे ऑल स्टेट में वी हैव ए AIDS सोसाइटी लाइक, तो उसको हेड करते हैं. तो मैंने सबसे पहले तो मैं उसको भी देखता था अपार्ट फ्रॉम माय वेरियस अदर असाइनमेंट्स. फिर हमारे यहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट भी था, दैट वाज कॉल्ड यूपी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट. ओके. सो उसमें भी दैट वाज सेपरेट फ्रॉम मिशन डायरेक्टर NHM. तो वहाँ पे भी उसको फिर मैंने उसका भी चार्ज मेरे पास था वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का. तो उसको उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें, सो दैट आई टुक एज ए पायलट किसी चीज़ को करना है. सो फर्स्ट वी यूज टू टेस्ट दिस that scheme provided with the flexibility. गवर्नमेंट में हमेशा वो रहता है प्रूवन चीज को स्केल अप, बट उससे पहले अगर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है तो वहाँ पे there I had this flexibility. So one of those things जो कि मैं कहूँगा कि जिसमें कि I take pride in those things कि मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था. और हॉस्पिटल मैनेजर को लेकर के एक तरह से जब मैंने भी अपने सीनियर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह से बात किया, सो एक रेजिस्टेंस भी रहता था कि CMS जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, दे वुड नॉट लाइक कि हाँ हॉस्पिटल मैनेजर और फिर वो चीज़ें उसको चैलेंज करे. सो उनको जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं उन लोगों को समझाया गया और वो चीज़ किया गया. तो हम लोगों ने हॉस्पिटल मैनेजर का जो सिस्टम मैं लेकर एंड के आया. हॉस्पिटल मैनेजमेंट यू आर रेफरिंग टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और आल्सो बिलो कॉमन कम्युनिटी हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी दिए गए, बट मोस्टली लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेल फीमेल हॉस्पिटल में कई ऐसी चीज़ें थी जो कि जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं था. फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अब ये कम्प्लीटली ये उनका डोमेन नहीं है. इसके लिए एक जो डिफरेंट काइंड का मैनेजर होना चाहिए जो कि वो कुड इंश्योर कि हर दिन जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट हो रहा है वो डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है. अदर देन पेशेंट्स के लिए जो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं
ये इंश्योर करना कि हाँ जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे फंक्शनल है या नहीं है, अगर फंक्शनल नहीं है तो हमने टाइमली उसके लिए You're saying, I thought you were talking about technology. No, you're talking about a person in every hospital. Yes. Is a hospital manager. Yeah, hospital जिसका manager. काम पूरा मैनेजमेंट देखना है, यस, not तो the उसको technical. उसको उस इंस्टीट्यूशन को मैंने सबसे पहले यूपी में And this was a new cadre Yes. created. And इसमें किस टाइप के लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हाँ These were like वो they were not doctors. नहीं नहीं they were not doctor, they had studied hospital management, और वो चीज़ें वो उनका स्ट्रेंथ था, तो उस कार्डर को हम लोग ले करके आए। और इनिशियल जो अगेन लोगों में अप्रीहेंशंस थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट में, बट वो इनिशियली फिर बाद में उसके बाद Their authority will be somewhere हाँ affected. बाद में उन्हें समझ में आया दे आर देयर टू हेल्प देम, कितनी मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स की इंडेंट गई नहीं गई, तो उन चीज़ों में एक तरह से मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक सपोर्ट मिला हॉस्पिटल मैनेजर के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि जो एक ये चीज़, और आज के डेट में हम लोग देखते हैं नाउ एवरी हॉस्पिटल हैज़ ए हॉस्पिटल मैनेजर हमारे यूपी में, तो एक मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ को मैं इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाया यूपी में। द सेकेंड बिग थिंग वुड बी नेशनल डायलिसिस प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ पर भी सबसे फर्स्ट टाइम जब NHM में वी गॉट फंडिंग फ्रॉम NHM, तो उसमें क्योंकि आज भी हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि प्राइवेट कोई डायलिसिस सेंटर नहीं होगा। जस्ट थिंक ऑफ बस्ती, गोंडा, हमारे कई ऐसे ज़िले हैं, उनमें भी संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, जहाँ पर किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो काफ़ी डिस्टेंस उसको हमेशा गोरखपुर जाना होगा, लाइक ही मस्ट हैव ट्रैवलिंग डिविजनल हेडक्वार्टर आप जा रहे हैं। हाँ मतलब, और वो चीज़ें जाना एवरी वीक इफ़ यू हैव टू गो ट्वाइस, तो ये पॉसिबल मतलब कि कितनी दिक्कत है। तो हाँ, और वो हम लोगों ने नाउ वी हैव एंश्योर्ड कि ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैव ए डायलिसिस सेंटर। तो इस चीज़ को हम लोगों ने सबसे पहले हमारे टाइम में All 75 have a government dialysis. government dialysis center, and this is run on a PPP model. Like we have provided them the space. हमने स्पेस प्रोवाइड किया है उनकी सारी की सारी RFP में कि what kind of service The different they will private provide. entities who have come on board and they're running these different Yes, centers yes. and there's some what revenue sharing. Not revenue. We are completely paying them all based on the number of services they are providing, number of dialysis services they are providing. We are making them monthly payment. Achha. And we have our standard service level agreement कि exactly क्या चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी डायलाइजर है, कोई चीज़ें कब They कितनी charge चीज़ें होनी also, चाहिए। assuming it- They are not charging anything. They don't charge at all. We are completely paying from our pocket, like from government's funding. from government fund. तो ये चीज़ें अब आज की भी डेट में once I have left the health department, but as a nodal officer और like जब मैं as secretary to CM भी जब मैं रहा, तो जब when we used to visit, तो this is something जो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि These are all functional, well functioning. Even yes, and this was one of the first initiatives on PPP model where we are providing services, health services through by engaging a private entrepreneur. So this I would say. hospital manager, dialysis center और तीसरा The third I would say like blood, and how do we increase like blood donation, how do we make people aware about blood donation, and related to these there are so many things. जैसे कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि कई बार हम लोगों ने जब अपने ज़िले में विजिट करते थे तो आई वुड हियर न्यूज़ की किसी की प्रेग्नेंट लेडी की डेथ जस्ट केवल कि टाइमली ब्लड नहीं मिलने के कारण से हो सकी। यू नो मतलब इनफैक्ट मतलब कि काफ़ी घरों में भी ऐसा होता है, अच्छे खासे जो लोग वेल टू डू फैमिली से हैं वहाँ पर भी ऐसा होता है मेरे में, तो जहाँ पर कि एक किसी की जब ब्लड देने की बात आती है तो आज भी लोगों के मन में इतने अप्रिहेंशंस हैं, इतने मिथ्स हैं कि फैमिली मेम्बर के उसका ऐसे भी हम लोगों ने समय देखे हैं जो कि उसका हस्बैंड बात खड़ा हुआ। मैं आई वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर, फिर रात में इसी तरह से पता चला कि हाँ उसका हस्बैंड भी नहीं आ गया, फिर हम लोगों ने किसी तरह से ब्लड अरेंज कराया उसको, वहाँ पर हम लोगों ने ब्लड ब्लैंक्स दिया। मगर तो उस तरह से एक जो ये चीज़ फील होती है कि देयर आर सो मेनी लाइव्स which can be saved just through timely blood donation or by ensuring that जो blood availability हो सके। तो उसके लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट ही हम लोगों ने एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कई काम किए, लाइक गेटिंग अ डेटा बेस, मेकिंग पीपल अवेयर। वी हैव टू हैव अपार्ट फ्रॉम ब्लड यूनिट्स जो हम इंश्योर करें अपने पास रहे, हमारे पास वॉलंटरी डोनर की कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि ऑल 8 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो हैं हम कभी भी वहाँ से अगर
से अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम उसको हमेशा अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकें। सो ये पूरा सिस्टम ये करने के बाद फिर यहाँ पे एज ए मिशन डायरेक्टर हमने वहाँ पर ब्लड इसको किस तरह से, क्योंकि जो हमारे शहर होते हैं मोस्ट ऑफ द जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं वो हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज होते हैं, मगर हम लोग वहाँ पर ब्लड मोबाइल वैन भी हम लोगों ने ये चीज़ किया, जिससे कि जो दूर दराज की इंटर कॉलेजेस हैं बिकॉज वो यूथ्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे ब्लड मोबाइल वैन ये करके कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया। ऑल आवर डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैव ए ब्लड मोबाइल वैन। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि इससे एक और रिलेटेड चीज़ है, वो एक थैलेसीमिया, देयर इज़ ए डिजीज़ लाइक जो थैलेसीमिया, जिनके घर में जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है दे वुड नो कि कितना पेनफुल कई बार होता है, और यू नीड टू हैव ए कॉन्टीन्यूअस ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन बच्चों के लिए। तो उनमें अगेन जो ब्लड डोनेशन, और अनलेस कि हम लोग इस मिथ्स को कवर नहीं करेंगे, जब हम ब्लड डोनेशन का और वॉलंटियर का परसेंटेज देखते हैं तो कंपेयर टू सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हमारे यहाँ अभी भी ब्लड डोनेशन बहुत कम है। सो अपने इन सारी drive for blood donation, having this mobile blood donation units which can go to interior places and do the camps to kind Yes, of get blood. yes. Of course, cities may you already have hospitals where it can happen. तो ये सब जब blood, and then you're also saying volunteers का list, which can complete then database management, database, so that you can on a need basis reach out to somebody in an emergency and say कि blood चाहिए. And what about blood banks? Actually, story. ब्लड बैंक में मैं वो तो जिसके ब्लड बैंक जो होता है, हमारे जो मेजर 8 ग्रुप्स होते हैं, तो उनका जो ब्लड बैंक्स में आपको ये इंश्योर करना है कि ऑल द टाइम जितनी आपकी अगर से मंथली जो आपकी अवेलेबिलिटी है, जितने तरह की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो ब्लड बैंक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर कर सके कि उसके पास ऑल द टाइम हमेशा ब्लड की अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि कभी पैनिक ये नहीं हो पाए। अपार्ट फ्रॉम वो टेस्टिंग और वो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर किसी को भी अगर आप कोई भी ब्लड दे रहे हैं तो प्रॉपर टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए ब्लड बैंक मैनेजमेंट को उसको इम्प्रूव करना, वो लोग at what level? किस एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हर जगह पे ब्लड बैंक है, मेल अब फीमेल हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर जगहों पे है, और साथ में साथ एक ब्लड स्टोरेज यूनिट की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे डिलीवरी पॉइंट्स थे वहाँ पे इफ़ यू कैन नॉट हैव ए सेपरेट ब्लड बैंक लाइक कंप्लीट fully functional blood bank, then at least you have to have a blood storage unit, जहाँ पर कि आप ब्लड बैंक से, मदर ब्लड बैंक से आप वहाँ पर ला करके ब्लड स्टोरेज यूनिट एस्टैब्लिश कर। This is at what level? This is now you're दिस इज एट CHC लेवल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो है ब्लड बैंक सब जगह, अब डिस्ट्रिक्ट उसके लेवल नीचे लेवल पर उसके हाँ उसके नीचे लेवल पे ब्लड स्टोरेज यूनिट, फिर देन जो ब्लड सेपरेटर होता है, क्योंकि ब्लड एक जो ब्लड यूनिट होता है उसमें प्लाज्मा और जो बाकी सारी चीज़ें हम सेपरेट करके कई लोगों को हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली इसमें भी रिवैम्प हुआ है ओवर लास्ट 5-10 ईयर्स, काफ़ी अच्छा काम हुआ है और उसमें मुझे भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। गुड। सो या दीज आर ऑल काइंड ऑफ हाई इम्पैक्ट थिंग्स। फ्रॉम जैसे आप हॉस्पिटल मैनेजर की बात कर रहे हैं, इट मे साउंड लाइक अ सिंपल थिंग बट आई कैन इमेजिन जस्ट नोइंग द सिनेरियो इन अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इट कैन बी ह्यूजली वैल्यू एडिंग, राइट? ब्लड बैंक एंड not just bank but donation drive and kind of Yes, that awareness that again can save lives. And jo dialysis wala, that's a very targeted kidney kind of focus thing. These are kind of great. I'm sure there are many other kind of such initiatives that you took, but I want to zoom out a little bit and for a moment keep your posting aside and think as a public health professional, right? That's an area of interest. You've seen it closely, you've also studied and so on. So as a public health professional, what is your diagnosis of what's the core challenge in the Indian public health system? And if you had a free runway and you could kind of decide and do what you wanted to do, then what would be your solution and what will be your recommendation? किसको कैसे transform किया जा सकता है? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे फील होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का है, और वो एक्चुअल क्योंकि एज यू नो आई एम एन इंजीनियर, यू आर ऑल्सो एन इंजीनियर, तो मैं थोड़ा सा ये चुका, मेरे ही बच्चे जब आई हैव 2 किड्स, तो दोनों से बात करो, एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर। जब मैं खुद हेल्थ में था, मैं बोला यार डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि बहुत बिकॉज आई फील कि इंजीनियर्स में देयर विल ऑलवेज बी ए क्लैश एंड डिमांड सप्लाई में। इट्स नॉट लाइक आज के डेट में इंडिया में वी आर सप्लाइंग मच मोर कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड। अगर वहाँ पे ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप स्ट्रेंथ हैं, इफ़ यू लर्न, इफ़ यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, देन ऑफ कोर्स यू विल ऑलवेज बी रिगार्डेड, बट देयर आर मेनली बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई है अगर लोअर लेवल पे मैं बात करूँ।
बट डॉक्टर्स के केस में आई ऑलवेज फील फॉर नेक्स्ट 20-30 years देयर विल ऑलवेज बी ए शॉर्टेज, बिकॉज द जो हमारी पॉपुलेशन है ये चीज़ें हैं, एंड इट्स नॉट ओनली विद डॉक्टर्स. Yeah, please spot on. And we've done also some kind of some work that we've done a couple of years back. It's a huge, Yeah. huge issue हाँ. now. But the question is, the follow-up question is कि क्यों है वो? अगर demand है, or then why is the supply not there? Because is it because the demand doesn't convert into the kind of let's say compensation, remuneration that one may get? Aren't there enough colleges? That's the challenge. So what's the लेकिन जो मुझे खुद लगता है, क्योंकि चैलेंज तो जो हम लोगों ने मेडिकल एजुकेशन के ऊपर उतना फोकस पहले नहीं किया. अब जैसे कि आज की डेट में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ही इज़ ट्राइंग टू एंश्योर कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ एटलीस्ट वन मेडिकल कॉलेज, बी इट इन प्राइवेट पार्ट और प्राइवेट स्फीयर. और हाँ, saying it's not been a focus. हाँ, तो अभी जो फोकस है वो चिकन एग की तरह है. आज के डेट में अगर हम ये सोचें कि हाँ, हाउ डू वी एंश्योर कि क्वालिटी डॉक्टर्स और क्वालिटी फैकल्टी मेंबर हम सारे मेडिकल कॉलेज में एंश्योर कर पाएंगे. ऑफ कोर्स इनिशियली चैलेंज होगा कि इन मेडिकल कॉलेज में, सारे मेडिकल कॉलेज में एंश्योर कर पाना कि क्वालिटी हमारी फैकल्टी अवेलेबल हो. बट स्लोली से 5 years 10 years डाउन द लाइन, ठीक है, हमारे पास इतनी ये चीज़ें होंगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की वो शायद फुलफिल हो So सके. saying it's more colleges and not so much what a doctor may get paid later on, which might not be lucrative enough and so on. वो नहीं है. लाइक वो चीज़ें, क्योंकि हाँ अगेन वो तो चीज़ फिर उस पर आती है कि बिकॉज दे आर द सप्लाईज इन शॉर्ट एंड द डिमांड इज ऑल्सो लाइक कहीं ना कहीं will be figured out. So, and even government is a huge employer itself. Government में भी इतनी vacancies हैं. the same goes with nursing also, where you're also helping our state government. So वो चीज़ें आई फील कि वो सबसे बड़ा चैलेंज है. Investment in kind of colleges and medical education basically to get more number of professionals. That's a core binding constraint today for health system. What in? And the second I would say which you also know, out of pocket expenditure. क्योंकि how do we bring universalization in our health services? जब मैं जैसे कि बाहर था तो जब हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी किया, यूएस हैज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट हेल्थ सिस्टम compared to what is there in UK or even Canada or Germany. It's like everyone has somewhere they have some uniqueness in their health system. Okay. But like everyone regards कि US is not one of the best health ecosystem which they are providing, or Germany or even UK is also like एक प्रॉब्लम है वहाँ पे वेटिंग टाइम की, क्योंकि लोग जो कई बार आपको हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए वेट करना पड़ता है काफ़ी. लेकिन समवेयर हमें ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस तरह से बेसिक एजुकेशन है इट इज़ फ्री, लाइक द गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड कि ये सबको अवेलेबल होगा, उसी तरह से हेल्थ भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एक मिनिमम बेंचमार्क तो हमें सभी को प्रोवाइड करना पड़ेगा. और मैं कहूँगा कि जैसे पहले तो RSBY था, बट RSBY वॉज एट ए वेरी लोअर लेवल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बट वो उसका स्केल उतना है, 30,000 रुपीज़. बट जो अभी आयुष्मान भारत के थ्रू हम लोग 5 लाख रुपीज़ तक की हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. और स्लोली अब आज की डेट में तो कवरेज जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड कर रही है हमें कवरेज, दैट इज़ अबाउट 30%. मगर उसके ऊपर टॉपअप, एक तरह से टॉपअप नॉट इन द सेंस ऑफ कि हम अमाउंट टॉपअप कर रहे हैं, हम लोगों ने और बाकी कई सेट ऑफ बेनिफिशियरीज हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से अपने फंड से उनको प्रोवाइड कर रही है. So just I'm trying to understand universalization में challenge क्या है? One is the scheme is there today. There is as you were saying 5 lakh का cover है आयुष्मान भारत है, but challenge ये आज the scheme is the challenge is the availability and where you go and kind of avail those services. The present चैलेंज एक दूसरी चीज़ ये है कि क्या whether we have reached up to the sizable population. सो एक ये चीज़ है, आज की भी डेट में काफ़ी ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है who are not getting covered under Ayushman Bharat. and the reason being And the reason being because like we are not we have not moved up to this universalization of healthcare. But as I'm saying, provides for it but coverage नहीं हुई है. नहीं, scheme का provision is not like, it's not aimed at covering like complete 100% of the population. But slowly I would say कि this is one of the biggest challenge, and it will take time. But I would say that we are on a right track. Because What is the constraint there? Constraint comes like
funding, like budget. There is a budget constraint because like any government, any welfare state would like to give like cover 100% of their population with this healthcare. So, but like जो priority में है, मैं ये कहूँगा कि जो अब health has become also like one of the most priority sectors for government. और slowly the as we are moving, so जो out of pocket expenditure के कारण से जो मैं बोलूँगा कि जो इंफॉर्मेशन asymmetry भी जो ये हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ वेयर डू वी गो, कहाँ पे मैं जाऊँ, ठीक है ना. इफ़ आई एम मेरे फैमिली मेम्बर्स में किसी को प्रॉब्लम है तो उस चीज़ के लिए थ्रू जो आयुष्मान भारत या इस तरह की जो स्कीम्स होती है, वी आर ऑल्सो लाइक इन ए वे वी आर ऑल्सो एड्रेसिंग दिस इंफॉर्मेशन asymmetry प्रॉब्लम ऑल्सो. क्योंकि पब्लिक को पता है द डॉक्टर इज़ नॉट एज लॉन्ग एज ही नोज कि हाँ ठीक है इसे इनके पास कार्ड है. तो मुझे लगता है कि ये जो चैलेंज है हम लोग इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. वन ऑफ द थिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द सेकेंड इज दैट हाउ डू वी यूनिवर्सलाइज आवर हेल्थ केयर. There are two broad pillars you feel. Human resource, a lot of investment in medical education, nursing, doctors. Yes. That's one, and they'll give dividend in the medium term. So if you say immediately 1-2 साल में कुछ नहीं होगा, but then kind of 10-year journey it kind of make a difference. That's a binding country that वो सॉल्व नहीं होता है तब तक नहीं होता. other things will not. Second is universalization of health coverage, so that the out of pocket expense, but that's also the biggest reason for people who get into poverty. If they're not in poverty, it's because health expenditure, out of pocket expense, that's the big thing. And उसके लिए having a wide coverage through the scheme, and there you're saying budget becomes the binding constraint there, but really expanding that, and also information asymmetry, which is where do I go if I have an issue, and wherever I go, then if you have a coverage, you have a 5 lakh cover through an Ayushman Bharat, then the hospital will take you because they are getting paid. उसी चीज़ के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ हमें पब्लिक को कैसे अवेयर करें. जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सपोज अगर हमारे यहाँ पर कोई भी टेक एग्जांपल ऑफ से कुशीनगर या इस टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बट आयुष्मान भारत से मेरा कवरेज है. तो हमें पब्लिक को ये बताना होगा, पब्लिक को अपनी एंटाइटलमेंट खुद पता हो कि हाँ वो क्या सर्विसेज है, कहाँ पे अवेल कर सकता है. Exactly. तो उसे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई उसे कंप्लीट सेट ऑफ हॉस्पिटल्स हो जो उसके पास हम लोग. When I'm in, where all can I go? It's not just government, because it covers for private government. वो तो distinction है नहीं आयुष्मान भारत and other schemes में. So knowing कि where all can I go in my vicinity to kind of get a treatment, and then you're saying covering a wider net. No, this is very helpful, and of course this is a topic we can keep discussing endlessly because it's a core this thing. But I think that parallel what you're saying, that जैसे education में universalization हुआ सर्व शिक्षा अभियान के बाद से, something similar is needed here. A step is Ayushman Bharat, but there's more wider coverage that's required. स्टेट के आपके पोस्टिंग वालों जी एक और चीज़ की बात करता हूँ, which is the current work that we are doing together, which is on family ID. Now family ID में the idea is to create an ID for every family in Uttar Pradesh with the objective of improving welfare delivery to them, scheme delivery to them. So सबसे पहले, of course we are doing this together, I understand some of these things, but still wanting to hear from you कि why family ID when Aadhaar is already there at an individual level, तो family ID की ज़रूरत कहाँ से आई? फैमिली आईडी की ज़रूरत या जो मैं ये बोलूँगा कि एक तो सबसे पहला हमारा स्ट्रेंथ ये था बिकॉज वी हैव एज आई मेंशन्ड वी हैव 15 करोड़ ऑफ आधार वैलिडेटेड डेटा विद अस. तो फैमिली आईडी की ज़रूरत हम लोग हमेशा कई ऐसी स्कीम्स देखते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी भी होती है. सपोज़ हाउसिंग स्कीम्स है, तो हाउसिंग स्कीम्स आज हम PMAY के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट साथ में आवास योजना, हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, बट साथ में साथ कई और स्कीम भी होती है जिसमें कि हम लोग हाउसिंग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. उसी तरह से अगर डूडा के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो अर्बन डेवलपमेंट में होता है. उसी तरह से हम लोग कई और जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स हैं, तो अगर एक तरफ तो जो हमारे नॉर्मल स्कॉलरशिप की स्कीम्स है उसके साथ साथ एक BOCW दैट इज़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिसमें हम सेस कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू भी हम n number of. So you're talking about the duplication, same person duplicates, this thing, but उसमें again individual ID से नहीं हो सकता, family ID की need. हाँ, that's वो इसलिए क्योंकि कई बार आप देखिए हमारे आज भी फैमिली हमारे यहाँ पर एक यूनिट होता है और कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए नहीं, जैसे फैमिली ओरिएंटेड. फॉर एग्जांपल जैसे कि इस तरह की मैंने बताया कि आवास की हाउसिंग की स्कीम्स है, दिस इज हाँ फैमिली के लिए ये चीज़ें हैं.
उसी तरह से फिर ये भी हमें इंश्योर करना पड़ता है, बिकॉज लाइक फंड की ऑलवेज इट्स नॉट कि हाँ देयर इज लाइक अनलिमिटेड फंड्स वी हैव. अगर सपोज आप कोई ट्रैक्टर दे रहे हैं या ट्रैक्टर की स्कीम है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की स्कीम है, सो वी वांट टू मेक श्योर कि हर मेसा या एवरी ईयर इट्स नॉट दैट वन फैमिली और फ्यू फैमिलीज आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स और कई ऐसी फैमिलीज हैं हु आर गेटिंग लेफ्ट आउट. सो ये आइडिया फैमिली कार्ड के थ्रू यही चीज़ इंश्योर करने का है कि टू इंश्योर ए बैलेंस बिटवीन जो भी नीडी फैमिलीज हैं उनमें से कोई भी लेफ्ट आउट नहीं हो. जो लोग भी हैं उनको एक यूनिफॉर्म लेवल से, इट शुड नॉट बी कि हाँ भाई एक अवेयर है और जो उसे पूरी जानकारी है, सो ही इज गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड अदर्स आर लेफ्ट आउट. One, you're saying there are kind of schemes which are focused on a family as opposed to an individual. Therefore, knowing the family as a unit becomes important for those schemes. Again, you're also saying there are some schemes where you cannot cover all families, and therefore you want to kind of almost distribute them across families, not concentrate it to some families who are drawing all the benefit. There's also that even in the individual schemes, the eligibility is sometimes family linked. So your domicile, your caste, your income levels of the family determine your eligibility as an individual for a scheme. So eligibility scheme eligible हो, but eligibility family level पर है. So therefore family ID helps there. It can help basically both saturation of lot of schemes or more kind of coverage, better coverage of schemes. हाँ, तो अगर दो तीन अगर जैसे अगर मैंने हमारे यहाँ पे स्टेट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलती है, जिसमें कि बर्थ के लेवल से लेकर के आप अलग अलग स्टेजेस पे you get अलग अलग स्टेज 2,000-5,000 rupees. If it goes in class 6, then she would get 2,000 rupees. If it goes in like for higher education, she would get 5,000 rupees. उनमें जब मैंने खुद भी बुला करके अपने ऑफिसर्स को और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनसे बुला के पूछा कि व्हाट इन योर असेसमेंट कि हम कितने जो एक्चुअल एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनमें हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं. सो नो वन कैन से कि अनलेस वी यूज सर्टेन डिजिटल टूल्स यू कैन नॉट रीच मोर देन से 60 or 65%. 30-35%, 1/3 of the population would somehow, because of lack of awareness or something, they will get left out. Through this family ID, we are trying to build up entitlement index, because like before the family they apply, we trigger a message to them that so basically proactive scheme delivery. Aapko, if you have the ID of all families, you know the eligibility of every person, you don't have to wait for somebody to apply. You can proactively reach them. Either the department can reach out or directly centrally you can trigger messages to say you are eligible for this, please apply. Or in some cases you may not even need to get them to apply. For example, if somebody is eligible for old age pension and turning 60 given the family eligibility criteria, then you can actually just trigger a saying that this is what you are eligible for, and you just do an okay, take a consent and you can start delivering. Yes, of course we account. हम लोग गौरव कंसेंट उनसे जरूर लेना चाहेंगे. Consent बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि they get something in there. But you can skip the whole process of application and और एप्लीकेशन में भी डॉक्यूमेंटेशन जो इतना लेंदी डॉक्यूमेंटेशन होता है, we can skip all those things by linking these different databases of beneficiaries. And that's the other thing, the way family ID is getting created is not like Aadhaar ki ground pe pura ek bar fresh सबका हो रहा है. That's not the idea. It's not about run a manual exercise, but to link the existing databases that already exist. Exactly. To get benefit by linking all these different databases. That's of the approach. Because like अगर income certificate है, if this is in a completely different database which is not getting linked to other databases, then we are not getting benefit out of it. But if we can link this income database with other things, we can. So that's I think the uniqueness that you have. Departments already have over the years created their own databases, linking all of them to create this, curate in some sense this family database. It may not be fully saturated, as in the database will not be full complete. Even with partial completion, there are a lot of benefits that can be unlocked, and beneficiaries can be identified, and proactive scheme and service delivery can be done. Great. So we've talked about all of the work, or not all, but the key postings that you have had at the state level. I want to change gears and go to also talk a little bit about district, right, which is DMship. But usse pehle, even at the state level, you've been in departments and you've also been part of the CM office. You were secretary to the CM. So एक डिपार्टमेंट में काम करने में और एक सीएम ऑफिस में काम करने में व्हाट्स द फंडामेंटल डिफरेंस, मतलब दोनों के डायनेमिक्स में क्या फर्क रहता है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ सेक्रेटरी और डायरेक्टर इन अ डिपार्टमेंट वर्सेस यू आर इन द सीएम ऑफिस? ये एज ए सीएम ऑफिस जो दो टास्क है, एक तो सीएम ऑफिस में जो ऑनरेबल सीएम के लिए जो फाइल्स आती हैं आप उनको स्टडी करते हो, यू प्रिपेयर ए नोट सो दैट कि सीएम उसमें डिसीजन ले सकें.
सो दिस इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको तो उस कारण से जब आप कई डिपार्टमेंट्स की फ़ाइल आती है, जो भी डिपार्टमेंट्स आपको असाइन है, आपको काफ़ी डीप उसमें जाना पड़ता है. यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स सो दैट कि तब आप सीएम को एडवाइस कर सकें. तो एक तो ये बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट काइंड का चैलेंज होता है. दूसरी चीज़ ये होती है कि व्हेन यू आर वर्किंग एज ए डिपार्टमेंट और एज ए डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, देन योर टास्क इज़ वेरी वेल कट कि हाँ ये है, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको ये करना है. यहाँ पे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आपको यू हैव टू पिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बट यू हैव टू पिक द एरियाज विच यू फील एंड इन नॉलेज ऑफ ऑनरेबल सीएम की जो कौन सी प्रायोरिटी स्कीम्स है, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनमें आपको रिव्यू करना है, उसमें आप बुला करके ये चीज़ें करते हो. बट हेयर लाइक यू हैव टू कीप पुशिंग, यू हैव टू कीप सजेस्टिंग द डिपार्टमेंट. और तो इसलिए यू आर नॉट डायरेक्टली इन द एग्जीक्यूशन सोर्स, नॉट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, but you have to keep like through review, through monitoring, if there is something where they need support from. So when it comes about interdepartmental coordination, then you are in a much better position to get support from various other departments. तो उस तरह के जो डिपार्टमेंट्स के चैलेंज होते हैं, उनमें आप बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं. बेसिकली टू थिंग्स यू आर सेइंग. एक तो आप कह रहे हैं कि यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी एबल टू both advise the CM or when something comes from a department, as well as kind of figure out this interdepartmental linkages, synergies, etc. So that's one. Secondly, when you are in a department, then your role is pretty well defined. यहाँ पे role is not as well defined in the CM office. Really up to you to carve out a role. Yes. And there are huge possibilities. So उसमें excitement भी है, आप ज़्यादा कर भी सकते हैं, but at the same time, it's not as structured or it's not as well defined. हाँ, मगर काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप सपोज इफ़ यू फील कि देयर समथिंग विच नीड्स टू बी डन, और जहाँ पर कि डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, देन यू कैन प्ले योर रोल. So there's a lot of nudging, there's a lot of kind of ideation, there's a lot of pushing the envelope that is possible to the CM. You have leverage also, I'm assuming. Yes. CM office have leverage. So जैसा कि आपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, लाइक कोविड टाइम्स में, एज अगेन कमिंग टू दिस हेल्थ पार्ट. सो just like I joined CM office in September 2019, and within 3-4 months, COVID has started striking on our door. So बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय में, और उसको किस तरह से एड्रेस करना है, बिकॉज लाइक अगेन जो इन CM ऑफिस ऑल्सो वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, किसी ने किसी सेक्टर में काम किया हुआ है, किसी ने किसी सेक्टर में काम किया हुआ है. सो उस समय में CM ऑफिस में आई own this responsibility because I was the one who had worked with health and very extensively in those sectors. तो उसलिए उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था, और I would say कि my most satisfying assignment in CM office was managing the initial first 6 months. Talk about it actually. You were at the forefront of COVID management in UP. There was this group of IS officers. Each one was given different responsibility. The core group which would meet the CM every day. तो एक बार थोड़ा सा just tell me about what that construct was, and उसमें आपकी responsibility क्या? देखिए मैं हम लोग जैसे कि एज ए CM ऑफिस में हम लोग वी आर पार्ट ऑफ ऑनरेबल CM एंड वी आर हिज कोर टीम. सो वी वर हिज कोर टीम. सो जो टीम 11 उन्होंने बनाई थी, जो डिफरेंट सेक्टर्स को, इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि हाँ ही हैड अ वेरी लॉन्ग विजन, और बहुत अच्छा उनकी जो सोच थी, उन्होंने स्टार्टिंग में ही इट वाज नॉट जस्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड जस्ट कि हाँ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि यहाँ जो भी कोविड रिलेटेड जिसको भी जिस टाइप की भी मेडिकल सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए. हमारे टीम 11 में उन्होंने सबको इंक्लूड किया, लाइक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि रिलीफ प्रोवाइड करना है, जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना है. उसके लिए रिलीफ कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी पार्ट बनाया गया. हमें ये भी इंश्योर करना था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्री फंक्शनल रहें, इंडस्ट्री ऐसा नहीं हो कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, क्योंकि जो ऑलरेडी एक क्राइसिस थी वो और बढ़ जाएगी. सो इसलिए किस तरह से उन टाइम्स में भी किस तरह से हम लोग इंडस्ट्रीज को ओपन करें, वो चीज़ किया गया. एग्रीकल्चर में अगेन APC और उनको इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि जो फर्स्ट दोनों साल में जब ये चीज़ था, सो दैट दोज आर पीक लाइक वीट परचेज पीरियड. तो अगर वीट प्रोक्योरमेंट अगर हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें फिर अगेन एक क्राइसिस एक उसके कारण से क्रिएट हो जाता. सो द APC वॉज पार्ट ऑफ द टीम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर वॉज पार्ट ऑफ द टीम. सो दिस वे ही
build like 11 cross-functional basically team. It's Yes, not just focus like- on health and हाँ. this thing, but the idea was to kind of, because it has to be dealt holistically, so you have 11 Yes, people yes. from all of these different. policing department, you have to ensure law and order. So like the whole, like all 11 Got it. हाँ Team sectors 11 was a fairly cross-functional team. आपका क्या responsibility? मेरा फंक्शन उसमें ये चीज़ था, जस्ट लाइक एवरी डे वी यूज टू कंपाइल रिपोर्ट्स, क्योंकि मॉर्निंग से ही अगर एवरी डे दिस मीटिंग यूज टू टेक प्लेस एट 9 और 9:30, तो सबसे पहले मॉर्निंग में रात तक की जो ये चीज़ें आती है, तो सबसे पहले जो हम लोग का इनिशियल, आई वाज mentioning अबाउट माई फर्स्ट 6 months, तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ बिग इज़ दिस थिंग, तो उस चीज़ को असेस करना कि हाँ कितना बड़ा हो सकता है. सो आई वुड से कि वो इनिशियल डेज में हम लोगों ने भी वो लाइक सम ऑफ अस वी कुड सी कि हाँ इसके लिए तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होगा. दिस वर्क कुड नॉट बी कैन नॉट बी गेट डन ऑन दिस गूगल शीट काइंड ऑफ थिंग. तो वी प्रिपेयर द होल कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने पूरा बनाया, कंप्लीट MIS, किस तरीके से एवरी डे जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो ब्लड और जो इसकी रिपोर्ट स्पुटम एग्जामिनेशन के बाद जो रिपोर्ट्स आएगी कोविड पॉजिटिव, उसको किस तरह से हम लोग डेटाबेस पे ये चीज़ें करते जाएं. वी यूज टू ट्रैक कि कितने बजे अगर जो रिपोर्ट दी गई है तो कितने बजे तक आ जाएगी. तो इसलिए पूरा कहाँ पर लैब के लिए तो एक पूरे लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को भी उसका पार्ट बनाया गया, जहाँ से हम स्पुटम कलेक्शन कर रहे हैं, वो जो हमारी टीम पूरी की पूरी जा रही है उनका रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा हो कि किस तरह से हम टाइमली वहाँ पर एक्ट कर सकें. और So the entire monitoring was with you, right? Putting together the data system which will kind of help track every case from the time they go from lab test to results come, then what? to finally like ensuring that the patient gets treated. So I would not say that this was completely with me. Yeah, I would say like I was part of the core team who were managing the system. So हम लोगों ने वो चीज़ें initially like अपने ऑफिस से ही जो प्राइवेट पैथोलॉजी थी उनको भी एड्रेस करना, उनके इश्यूज को एड्रेस करना, किस तरह से गया. तो दिस वाज अ कंप्लीट एक्सरसाइज. And also on the government, as you're saying, a lot of private people involved, so taking them along, kind of supporting them, getting. क्योंकि हमें जो वी यूज टू हैव लाइक एवरी डे इफ वी हैव टू एंश्योर कि कितना RT-PCR टेस्ट करने हैं. अब RT-PCR इनिशियली लाइक पीपल वुड नॉट नो कि व्हाट इज RT-PCR. जो हमारे जो लैब्स थे उन लैब्स में हम कैसे इक्विपमेंट परचेस करें. इक्विपमेंट जब हमारे कई ऐसे इक्विपमेंट थे जिनके लिए कि सप्लायर बाहर से अभी आना था, किस तरीके से हम उन सप्लायर्स को ये इंश्योर करें कि वो हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को और हमें सबसे पहले वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें जिससे कि हम मैक्सिमम अपने लैब्स में RT-PCR टेस्ट स्टार्ट कर सकें. तो इस तरह से काफ़ी चैलेंजेस थे. And I think that was a big challenge, right? This testing itself in UP was a big. Yes, but we had only one center. बस केवल KGMU में हो रहा था. बट लेकिन बाद में अब हमारे पास कि हमारे मोस्ट ऑफ द आवर डिस्ट्रिक्ट्स हैव लाइक देयर ओन RT-PCR लैब्स. तो ये काफ़ी चीज़ें एक लर्निंग एक्सरसाइज रही. उसके साथ जो जैसा कि मैं अपने रोल किया इस चीज़ के बाद, अपार्ट फ्रॉम लाइक कोऑर्डिनेटिंग विद दीज Team 11 and making sure कि I get data from all these departments and this is put before our honorable CM. Apart from this, जो खुद पर्सनल लेवल पे हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, CM हेल्पलाइन का हमने मैसिव यूज़ किया उस समय में. इनिशियली बहुत कोई ऐसा हमें भी आइडिया नहीं था कि इसको कैसे स्टार्ट करना है. सो एवरी डे वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. हम लोगों ने सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस में ही यूज़ करते हुए, जब बहुत 30, 40, 50 पेशेंट्स थे, तो हमने उसको अपने ऑफिस से कॉल कराना शुरू किया कि यार ठीक है इनसे, इनके फैमिली मेम्बर से, क्योंकि जब डेटाबेस में हमारे आने लगा कि हाँ उनका मोबाइल नंबर वो चीज़ है, उन्होंने कॉल करना कि क्या पोजीशन है, क्या ये चीज़ें हैं, क्या आपको डॉक्टर से ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. क्योंकि ये भी चीज़ इनिशियली था कि अटेंडेंट बिल्कुल भी मिल नहीं सकते हैं, काफ़ी चीज़ें थी. तो उस समय काफ़ी बहुत ऐसे अच्छे इनपुट्स आए जिनके बेसिस पे हम लोग अपने सिस्टम को भी, जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत थी उसको भी करेक्ट कर सकें. डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न था उसको भी एड्रेस कर सकें. और जो पब्लिक में, जो पेशेंट्स में, उनकी फैमिलीज़ में जो एक मैसेज गया कि यो गवर्नमेंट इज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट यू. तो ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया. And that office experiment then later got expanded to CM helpline. Yes. उसके बाद क्योंकि CM हेल्पलाइन में देखो, क्योंकि इनिशियली फिर हम लोग ये किया, कुछ और हमने टीम बढ़ाई, अपने ऑफिस के अलावा कुछ और ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया. क्रॉस मतलब कि हम लोगों ने वेरीफाई करना कि जो डॉक्टर से जो रिपोर्ट आ रही है और जो एक्चुअल जो पेशेंट्स की जो फीडबैक है उसमें क्या है. कई बार ऐसा होता था कि एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस से निकलने में डिले हो गया, उसके कारण से डेथ हो गई. इस तरह के कई केसेज आते थे
या फूड में प्रॉब्लम है, खाना नहीं मिल रहा। basically both where people can call for different help that they need, and also the Inbound, helpline, outbound, both. for Yes. just tracking patients. Yes, yes. who already So फर्स्ट टाइम हम लोगों ने आउटबाउंड कॉलिंग स्टार्ट की इन ए बिग वे, और फिर उसके बाद नॉट ओनली इन कोविड, उसके बाद तो हमने चाहे बेसिक एजुकेशन में डीवीटी हमने किया तो क्या मिला, तो फिर हम लोग उसको मल्टीपल, तो वो फीडबैक के लिए यूज हो रहा है। Yes, हाँ। पहले वो जो है वो केवल मोस्टली इनबाउंड कॉल्स के लिए, और बाकी केवल फीडबैक के लिए ये चीज़ हम लोग करते थे। जो कॉल्स उन्होंने जो कंप्लेन की है उसमें उनका जो रिड्रेसल हुआ नहीं, उसकी कॉल बैक के लिए। बट नाउ हम लोग थ्रू दिस कोविड लर्निंग, हम लोग कोविड एक्सपीरियंस में हम लोगों ने और भी तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स At the peak of COVID, how big was the helpline and how many calls would you kind of get? And 50,000, around 50,000 used to, like 50,000 inbound, outbound. outbound calls every day. हाँ, So CM helpline was one thing that came out that you kind of put together. Then this whole getting data from everyone, putting it at one place. Yes. I believe it was a good data management system. You can track. You could track every yes. patient. Ours was, I would say, कि ours was one of the best like data management system in the entire country. And, So it did help us in managing this. and you would kind of Updated. that on the basis of that every day the meeting would happen with the Yes, CM and yes. it would get- Every day in the morning when I will wake up, I will get the results from like the number of patients, the number of patients who were tested, how many got positive, from which districts, and whether they were like they are being quarantined in their house, But not or this whether they aggregated data. You would get actually you could track at the patient level. exactly name wise, like we can, like initially when we was like how many of the so we could pinpoint that suppose 5 number of deaths have taken place. Then our chief minister would also, like, he would grill like not only ACS Health or principal secretary who is looking after health department, other officials also, that whether you spoke to their parents, to their family members, what was the reason? Why was why didn't this? No, the reason I'm also emphasizing it because we also had our own experience at the time, and the data was a big issue. That's this individual level tracking. Once you have that, then you can get all aggregated this thing, all insights. All Now I was like, अगर 20 deaths हुई हैं, तो 20 deaths का 9 o'clock we used to have 2-3 lines का, फिर बाद में तो ACS Health 2-3 liners वो you would bring that कि क्या चीजें क्यों डेथ हुई, ठीक है। So that is very powerful because that was not there everywhere. I can say that a lot of things are happening on Excel sheets and they'll get aggregated and there's some anomalies in data, but you can get the data set. No Excel sheet management, like every death you can find out when was he actually detected with COVID positive thing, when was he admitted, at the time of admission, what was his oxygen level, what were his other parameters, and इसमें यूपी में just we are on that topic. There was this phase when there's a lot of coverage in media of kind of bodies lying and being floated and all of that. There was a phase in the middle where that became a big thing, and I don't know whether those were also deaths which are getting tracked or those were kind of outside of the system. उस समय क्या हुआ था, because that was the middle part where it was really बिल्कुल गौरव, देखिए वो तो चैलेंज या वो फेस तो हम सब ने फेस किया, ठीक है ना, बी इट मी पर्सनली, नॉट एज एन ओनली एज एन ऑफिसर, आपने सबने हम लोगों ने फेस किया था। आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर इन लॉ ड्यूरिंग दिस सेकेंड फेज ऑफ 2021। सो 20 में जो जिस समय में कोविड आया था, तो वही हम लोगों ने चैलेंज उसको ये चीज़ किया, और अपने सिस्टम्स को, लाइक आई वाज मेंशनिंग, अपना ये मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट, बाकी सारी चीज़ें, पेशेंट कॉलिंग, वो सारी चीज़ तो वी वर एट टॉप ऑफ इट। बट जो ऑक्सीजन का जो हमारे यहाँ पर वो जो चीज़ था, तो दैट वाज अ बिग चैलेंज। उसको भी, उस हर्डल को भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की गई, काफ़ी तेज़ी से ऑक्सीजन प्लांट और उस चीज़ में जो ये चीज़ एवरी डे आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड एज अ पार्ट ऑफ हिज टीम वी यूज टू मॉनिटर कि कहाँ से हमें ऑक्सीजन सप्लाई कितना मिल रहा है, झारखंड से क्या आ रहा है, बाकी जगहों से क्या आ रहा है। बट दैट वाज ए वेरी, क्योंकि उस फेज में ऐसा हुआ कि 2020 में जब फर्स्ट कोविड का वेव था, तब उस समय में हर फैमिली मेम्बर को पता है, और वी यूज टू गेट आवरसेल्फ टेस्टेड। मगर जो सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि पीपल वुड जस्ट अज्यूम कि दैट दिस इज कोविड, क्योंकि वो वेव इतना ये चीज़ था कि पीपल वुड नॉट लाइक टू गो टू द हॉस्पिटल गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। तो जब टेस्टिंग ही अगर उन्होंने, तो हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने हर दिन 1 लाख को टेस्ट करना था, 1.5 लाख को, मतलब
जो भी स्ट्रेच करके जितना भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतनी तक टेस्टिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हुआ, लेकिन तब भी देयर वर फैमिलीज both in yours and basically one was a stretch on the system, and if somebody is not getting tested, then the person is not in your system, right? Not It in- cannot be in the system. not in our Therefore, system. that is Yes. outside of the Yes. system, so that Yes. itself is a challenge. So- And also behavioral thing, as you were saying, people not getting tested. so that you can never with full surety you can say that this death had taken place because of COVID, because that person, the family members, they were not getting themselves tested And also despite the all our resistance effort. to testing and of course crisis. Got it. ठीक है, सो हमने काफ़ी स्टेट की बात करी, अब डीएमशिप पे आते हैं. इट्स अ वेरी kind of in that sense an important institution, DM, district magistrate. Some states में it's called deputy commissioner, DC बोलते हैं, कई states में collector बोलते हैं. So DM, DC, collector, all of it is practically the same. You are the CEO of the district, and there are around 700 odd districts in the country. So really the CEO of 1/700th of the country if you are a DM. And it's a very cherished posting. I've talked to many IAS officers. सबके अपनी DMship काफ़ी याद रहती है कि I was DM here, DM there. Because you feel empowered in that role, you can do anything that you want. The buck stops with you in the district, and you can do anything in some sense. You pick an area and you can kind of start focusing on that. So it's a very important role. In fact, I was telling you last week, I was at Labasna, the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie. वहाँ पे I saw that 250 years, एक वो hologram था of 250 years of the institution of DM. I think it started, of course, it was a old British time legacy. And I think the collector word is also the revenue collector at the British time. वहीं से वो हो रहा है, but it was 250 years of the last year it was celebrated. So it's an important institution, and I think it's between states by state vary करता है, but 5 years into service to up to 15 years into service. That's the broad range in which you will be DM of You are very right. Yes. few districts. So one district for 2 years, then another district 1 year, 9 months, 3 years, whatever. But you have multiple districts, you get to play that role. आपके tenure में how long were you DM? मैं almost 10 years था. 10 years, years, you were. That's on the higher side, I would assume, right? Normal से थोड़ा higher side. नॉर्मल से थोड़ा हायर साइड था, And how और many हमारे बैचेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिले थे, बिकॉज आवर बैच स्ट्रेंथ यूज्ड टू बी वेरी लो. अच्छा, हाँ. तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने 9 districts. 9 डिस्ट्रिक्ट, That's तो a एंड definitely एट एन एवरेज ऑफ 1 year जस्ट प्लस. हाँ. तो आपका अगर if you look at your, you also remember that time fondly, मतलब DM. ऑफ कोर्स, यस. तो उसमें out of these 9 districts, which was the most challenging and which was the most rewarding? Rewarding in the sense where you feel you could do a lot, and challenging where you really, मतलब the challenges were so much that you, it was. इन मतलब दिस लाइक कई जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन होता है ना, वेयर यू कैन नॉट पिक लाइक one out of these many. So I would say कि every district has its own challenges. So if I worked in Sonbhadra, then this has completely different set of challenges. सोनभद्र की बात करते हैं. What was the situation? सोनभद्र में I was there in 2004-05. So उस समय में थोड़ा नक्सलिज्म और उस चीज़ की भी प्रॉब्लम थी. आज के डेट में हम लोगों ने कम्प्लीटली करीब उसके ऊपर पूरी तरह से ये चीज़ कर लिया है, लेकिन उस समय ही प्रॉब्लम थी. हमारे समय में ही PSC की एक पूरी ट्रक नक्सलाइट्स ने उड़ा दी थी. तो वो चीज़ें थी. तो वो जो चैलेंज है, हाउ डू यू ब्रिंग पीपल. ज्योग्राफी थोड़ा ज्योग्राफी वाइज सोनभद्र जो बिल्कुल हमारे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है. वाराणसी से हाँ, और मैं मतलब आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन वन थिंग दैट आई it was at that time regarded as energy capital of India, because we have so many generation plants. Power. In Coal. Yes, coal in Sonbhadra, Anpara, Obra, NTPC. We have 2 NTPC power plants. So I used to take pride in this. But despite all those things, you can very well assume we have Hindalco, we have everything, but like people were getting pulled to such extremist position and extremist thoughts, and so उस चीज़ को वो बहुत बड़ा चैलेंज था. फिर डेवलपमेंट का मुझे आज भी ख्याल है, क्योंकि कई इस तरह के इनएक्सेसिबल एरियाज़ थे, और फॉरेस्ट के कारण से काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज़ थे, बिकॉज वहाँ पे रोड्स नहीं थी. और आज जब आप जाते थे तो देन यू कैन फील कि किस तरह से पब्लिक किस शायद आज से 10 साल या 20 साल पीछे के समय में जी रही है. और पानी पीने के लिए उस समय में पानी के लिए गड्ढे में मतलब पानी पी करके उसको चूहा कहते थे,
और वहाँ पे स्टोर करते थे और उससे पानी, बारिश का पानी उससे, ड्रिंकिंग वाटर, हाँ ड्रिंकिंग, हाँ, तो वो चीज़ें पीते थे। या फिर कई बार पहाड़ के नीचे उतर करके काफ़ी किलोमीटर जा करके नीचे जा करके उनको पानी लाना पड़ता था, उसको स्टोर करना पड़ता था। तो इस तरह के कई ऐसे चैलेंजेस थे जो कि सोनभद्र में हैं। अब थ्रू वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अब तो कई वहाँ पे रोड्स वगैरह भी, जो ऐसी जगह पे जहाँ पर रोड्स नहीं थी वहाँ पे रोड्स बनाए गए हैं और उसको एड्रेस करने के लिए कोशिश किया गया है। मगर ये है कि यस, सोनभद्र वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन दोज टर्म्स। अब मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में जो अर्लियर इट वाज कॉल्ड इलाहाबाद, आज के डेट में इट इज़ प्रयागराज। सो प्रयागराज वाज अगेन वेरी चैलेंजिंग असाइनमेंट, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ में जुडिशरी है एंड यू हैव इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यू हैव स्टूडेंट्स, यू हैव लॉयर्स, सो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यू हैव टू डील विद every group every day on a daily basis. So Prayagraj was also a very challenging task. Again, like I worked in Aligarh also. Sharing दोनों में सोनभद्र प्रयागराज में some experience, some example which kind of brings out that complexity or brings down that nuances. कुछ आपका संस्मरण, कुछ anecdote? अगर प्रयागराज की बात मैं करूँ तो एक इंसिडेंट हमारे समय में हुआ था, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि हाँ कौन से चैलेंजिंग टास्क, जैसे कि मैंने सोनभद्र में तो बताया कि आप PSC जब आपको ये चीज़ कर दी गई और या उस तरह के जब आप एरियाज़ को विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स भी आपके बहुत फील करते हैं कि वेदर आप सेफली रिटर्न हो रहे हैं। मगर ये भी चीज़ था कि अगर आप नहीं जाएंगे उन जगहों पे जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं तो लोगों तक कहाँ से वो डेवलपमेंटल और वो चीज़ इनिशिएटिव्स कैसे पहुँचेंगे। तो वो and you're saying inaccessible, it's one is infra wise inaccessible, और दूसरा the fact that the left wing extremism is prevalent and therefore they control the territory as opposed to the government. और आप मतलब कि जनरली लोग पीपल और ऑफिसर्स वुड अवॉइड गोइंग टू दोज एरियाज। सो वो बहुत बड़ा चैलेंज था उसमें। एंड वो जेन्युइन रिस्क रहता है या फिर एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग है कि अगर DM जा रहा है तो DM को कुछ नहीं करेंगे कम से कम? इज दैट अनरिटन रूल? नहीं, ऐसा मैं कोई रूल या ये चीज़ तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब जहाँ पर अगर अब आज के डेट में नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं पर भी जहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती हैं, कहाँ पे उन्होंने लैंड माइंस लगा रखा है, सो ए लैंड माइन विल नॉट आइडेंटिफाई कि अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो यहाँ पे ये नहीं करना है, सो यू कैन गेट कॉट ऑन दो सिचुएशंस। मगर मुझे ख्याल है सोनभद्र में जब मेरे एक डिप्टी CMO हुआ करते थे और हम लोग जाते थे, क्योंकि मैं मेडिकल ऑफिसर्स को अगेन लेके जाता था, क्योंकि अब ज़्यादा तो कई जगहों पे हो सकता है मेडिसिन की या कई ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़े। तो मुझे ख्याल है, आई डोंट रिमेंबर कि हाँ, क्योंकि काफ़ी समय तक तो मैं उनके टच में था, अब वो आज के डेट में है भी या नहीं है, तो ही यूज़ टू टेक केयर, मतलब मेरी भी उस तरह से अपने बच्चों की तरह अपना ख्याल रखते थे कि हम लोग जाते थे तो पहाड़ पे तो पूरे कुछ खाने वाने के आइस पैक में, जैसे कि कुछ, क्योंकि जब आप जा रहे हो तो आप कब लौट करके आओगे। तो आई रिमेंबर वेरी फंड मेमोरीज ऑफ लाइक दोज विजिट्स विथ हिम। तो उसी तरह से देखो प्रयागराज में अगर आप चैलेंज की बात करोगे कि एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस चीज़ को आप किस वे में देखते हैं। हमारे एक यंग ऑफिसर, IAS ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ने ज्वाइन किया, उसने आई वुड से इन गुड फेथ उसने ये लिखा कि हाँ भाई, जो पीपल आर इनकरेज टू डायरेक्टली टॉक टू हिम, not come through lawyers or some other middlemen, या इस तरह से इस चीज़ को उसने लिख दिया। अब इंटेंशन, इट कुड बी ए वेरी गुड इंटेंशन, इट वाज ए गुड इंटेंशन, बट जो नेक्स्ट डे हम लोग तहसील दिवस कर रहे थे, तहसील दिवस में हम लोग डिफरेंट सब डिवीज़न में जाते हैं, सडनली आई वुड हियर कि वहाँ पे काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई है और कई लोग CDO के ऑफिस में जाकर के उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया है। देन मेरे बगल में CDO बैठा हुआ, आगे हुआ क्या तुमने किया है? तो फिर देन उसने बोला कि हाँ ऐसा हुआ था और इस तरह से हमने किया है, और कल कुछ लोग आए थे इस चीज़ के अगेंस्ट ये चीज़ करने के लिए, बट देन वी हैव टू रश टू Allahabad. So basically, he said, I want to directly interact with people. So people had come, he would have interacted, they were not satisfied in something, and next day वो तोड़ फोड़ होने लगी। मतलब कि लोगों ने जो
लॉयर्स ग्रुप था या ये चीज़ें कि हाँ आपने इस तरह से लिख करके आपने हमारे प्रोफेशन को और आपने हमारे इसको चैलेंज किया है, दे टुक इट दिस वे। उसके बाद फिर वहाँ पर जब तक हम लोग पहुँचे काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। दैन इट वाज हैंडल्ड इन नेक्स्ट 2-3 days। सो इस तरह की कई चैलेंजेस कई और डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने फेस किए हैं। तो वो चीज़ें होते हैं, बट दैट इज़ ऑल लाइक उससे जो एक एक्सपीरियंस आता है, आप चीज़ों को समझना, लोगों को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बता रहा था कि मैं आई वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ऑल्सो। अलीगढ़ में AMU भी था, उनमें कैसे डील करना है। तो सिचुएशंस होती हैं व्हेन यू आर इन ए डिस्ट्रिक्ट फॉर ए ईयर और सो। तो कई बार आपको ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर कि आपको काफ़ी अच्छे से डील थोड़ा सेंसिटिव दिस थिंग that's why the experience is also kind of highly rated in that sense. आपका सबसे what was the district where you feel you could do a lot, जहाँ पे आप ये काफी सारे इनिशिएटिव्स कर पाए, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बताइए और फिर क्या कर पाए। मैं सहारनपुर में, मैं कानपुर नगर में भी, जो कानपुर था उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा। फिर वहाँ के बाद मैं गया था सहारनपुर। आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 years। समझिए तो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं रहता है। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवार्डिंग है, इसमें यू वुड से कि काफ़ी सेटिस्फाइंग था मेरे लिए भी। तो व्हाट आर सम ऑफ द, और उसमें मैं पहले ही बताना चाहूँगा, जैसे कि जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, व्हेन यू नो द पल्स अबाउट दैट डिस्ट्रिक्ट 1 year 1.5 year, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो, दैन those are the times जबकि आप really deliver every day your output and your general to I feel, be it a district or be it a department, कहीं पे भी अगर आप हैं, there's some learning curve and then you can really deliver. But what one of the challenges in bureaucracy is also that transfers and this thing are kind of there's no set kind of mechanism, right? So तो आपको आप सेटल हो इतने में आप दूसरी जगह चले गए, that's a very 1 year जो पीरियड होता था एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, क्योंकि there are multiple festivals जो हमारे यहाँ पर होते हैं। So you have to like every festivals gives you very different kind of experience। अगर कोई भी चीज़ है, मुहर्रम है, होली है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं दुर्गा पूजा में, तो वो हर जगह पे अलग फ्लेवर है, अलग तरह के वहाँ पे ट्रेडिशंस हैं। तो इसलिए उसको समझने में 1 साल लग जाते हैं, तो 1-1.5 साल बाद। तो इसलिए फिर वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने की, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हमने किया, किस तरह से एक नदी को कैसे हम लोग, पाँव धोई नदी वहाँ पर थी। अच्छा, कौन सी नदी? सॉरी, पाँव धोई। हाँ। तो हमने उसको पाँव धोई, उसका नाम इसलिए था क्योंकि जब पहले के समय में जो ट्रेडर्स आते थे बाहर से, तो वहाँ पर नदी में अपने पाँव धोएंगे, उसके बाद दे यूज्ड टू ट्रेड, तो इसलिए था। तो बहुत रिजुवेनेटेड दैट रिवर वाज रिवाइव्ड। यस, तो उसका हम लोगों ने ये चीज़ करके किस तरह से लोगों को कैसे अवेयर करके, क्योंकि अदरवाइज तो जैसे कि जस्ट एज यू मस्ट हैव हर्ड कि अगर अभी हमारे यहाँ पे लखनऊ में भी एक कुकरैल कभी नदी हुआ करती थी, आज हर आदमी उसको कुकरैल नाले के नाम से जानता है, तो उसको भी रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी तरह से पाँव धोई को वो ऑलमोस्ट नाले में कन्वर्ट हो गई थी। इट यूज्ड टू जस्ट कैरी आवर, तो उसको कंप्लीट हम लोगों ने नॉट ओनली मेकिंग पीपल अवेयर कि किस तरह से आपको अपने गार्बेज उसके ऊपर थ्रो नहीं करने हैं, उनके लिए एक अलग सिस्टम होगा जो कि आपको डोर टू डोर कलेक्शन कर ले। साथ में साथ आपको ये भी चैलेंज था कि जो सीवर लाइंस डायरेक्टली वहाँ पर खुल रही हैं, उनको किस तरह से आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उसको ये करें, लोग उसको बाईपास नहीं करें, हमारे खुद के जो प्लांट ऑपरेट करते हैं वो लोग उसको बाईपास नहीं करें, उसको ये करें। फिर दूसरा चैलेंज ये था कि जो उसका सोर्स है, जो सोर्स के पास आप किस तरह से सोर्स को आप ऑगमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पे उसका एक पेरेनियल मतलब एक ये चीज़ें बना रहे। तो वहाँ पे मनरेगा और जो उस समय स्कीम्स आई थी, तो उन लोगों में भी पब्लिक को जोड़ करके कैसे ये चीज़ें कर सकें, तो वो कैचमेंट पूरा एरिया को डेवलप करना। तो इस तरह से तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आप जनरली 2nd और 3rd ईयर में कर पाते हो। तो इस नदी के ऊपर एक्सरसाइज किया। वहाँ पर इसी तरह से एक ब्लाइंड स्कूल था, हमारे हम गवर्नमेंट ही रन करती है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। जब सबसे पहली बार मैंने गया तो मैंने देखा कि एक रेंटेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, बहुत ही डायलेपिडेटेड कंडीशन, बहुत ही बिल्कुल टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर हमने ऑलरेडी ये विजिट्स में देखा था कि एक हमारे पास बेसिक एजुकेशन में एक जगह पर बिल्डिंग हमारी थी जो कि इन यूज़ नहीं थी, उसको हमने पूरी मरम्मत करा के पब्लिक से भी उसमें डोनेशन फंडिंग ये करके सपोर्ट ले करके फिर हमने उन बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया। और काफ़ी सालों तक जब तक वो बच्चे पास आउट हो रहे थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद भी
मैं, मेरी वाइफ, हम लोग वी यूज टू कीप इन टच विद बच्चे की, हाँ आफ्टर यू मूव्ड आउट हाँ, कि उन बच्चों का उसके बाद ब्लाइंड मतलब स्कूल से निकलने के बाद कहाँ पे, क्योंकि देहरादून में एक हमारे हायर लेवल स्कूल था ब्लाइंड स्कूल, तो वो चीज़ें वहाँ पे उनका एडमिशन, तो इस तरह से चीज़ें थी हमारे। फिर अगेन एक जो डेस्टिट्यूट लेडीज़ और जो कई बार उसका हिंदी में उसका नाम कह रहा जाता है पश्चातवर्ती संस्थान, तो वो वहाँ पे एक हुआ करता था, क्योंकि कई बार आप जब देखते हैं कि मजिस्ट्रेट्स भी और उसमें भी कई बार ऑर्डर होने के बाद लेडीज़ को वहाँ पर रखा जाता है, तो अगेन उसमें भी जब हम लोग एक बार वैसे ही छुटमलपुर एक जगह है सहारनपुर में, तो बहुत ही बुरे कंडीशंस में था। और मेन सबसे मुझे या किसी को भी फील होता है कि एटलीस्ट टॉयलेट्स और वो चीज़ें तो बिल्कुल, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली इनह्यूमन, अगर हम लोग वो फैसिलिटी भी अगर हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बिल्कुल चोक्ड कंडीशन है ऐसे, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने ठीक कराया, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग। और इवन लाइक इट्स मोर देन 12-13 ईयर्स, बट आज भी सोच करके लगता है कि यस वी कुड डू समथिंग। तो यू सी द इम्पैक्ट थोड़ा अप एंड क्लोज, सो यू क्लोजर टू द ग्राउंड, सो आप वो देख पाते हैं कि आपने जो किया उसका क्या असर हुआ। दूसरा you can decide to do anything and do that. Exactly. There's nobody kind of और जो आप देख रहे हैं आप खुद देख पाते हैं कि किस तरह का इम्प्रूवमेंट वहाँ पर हुआ। और फिर नहीं, I am completely, हम लोग भी अपने earlier अवतार we used to work with MPs on constituency development and we used to work very closely with the district administration उसमें। और अब में ये है कि उस समय हम लोग जो भी इनिशिएटिव्स लेते थे उसका we could meet the beneficiaries, we could see the impact very up and close, touchy and feely impact जैसे अब a lot of it is in numbers, lot of it is data, a lot of it is just kind of you're slightly away when you are kind of बिल्कुल you're very right। अब जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय था उस समय में, तो स्टार्टिंग में जब याद है कि हाँ उनमें बाउंड्री वॉल्स, कई कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बाउंड्री वॉल्स का पैसा नहीं था, उनको क्रिटिकल फंड से बाउंड्री वॉल दिया सेफ्टी के लिए, इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी था। कई और चीज़ों की फैसिलिटी जो इस तरह के स्कूल्स में नहीं हुआ करती थी वो हम लोगों ने वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप ये बताइए कि यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आपका अर्ली पार्ट ऑफ योर लाइफ वाज वेयर, यू आर फ्रॉम बिहार राइट? यस। तो बिहार में कहाँ से एंड व्हाट, जस्ट टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर। मैं बिहार में, फादर तो मेरे सासाराम को बिलोंग करते हैं और मेरी मदर पटना से थी, पटना से हैं। सो मैं मतलब इनिशियल डेज में बक्सर, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बक्सर, हाँ। सो थर्ड तक मैंने थोड़ा सा फादर की शिफ्टिंग, मतलब जो मुझे याद है थर्ड तक वहाँ पे की थी, फिर फिफ्थ ऑनवर्ड्स पटना में रहा मैं और वहीं पर स्कूलिंग हुई थी। और जैसा आपने पूछा कि व्हेन डिड यू डिसाइड टू, कब आपका वो बना कि आईएएस करना है या? आई होप यू वुड नॉट लाफ और यू मैं तो यही कहूँगा कि हाँ वो संभालते ही तो वो है भी थोड़ा, आई थिंक बिहार में ट्रेन में, इफ यू गुड इन स्टडीज या तो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी करेंगे, तो वही चीज़ होता है। तो आप जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने अगर ये देखा कि हाँ ठीक है बच्चा स्टडी में बिल्कुल, अब जैसे थर्ड क्लास में गए तो फोर्थ में जब एडमिशन की बारी आई तो टीचर ने बोला कि नहीं ये तो फोर्थ में नहीं, आप कहो तो फिफ्थ में एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर फिफ्थ में एडमिशन हो गया। तो उस केस में पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ फर्स्ट इंजीनियरिंग एंड देन आईएएस। तो उसी समय में थर्ड फोर्थ में ही, आई वुड से थर्ड में ही पेरेंट्स को उनकी एक ड्रीम थी कि हाँ, और बात कुछ उसी तरह का होता गया। और So first IIT you wrote वहीं से बिहार से, and then you came to IIT कानपुर। IIT कानपुर में 90 में मैं आया, 94 पास आउट वहाँ से किया। वहाँ पे आप कैंपस पे क्या करते हैं IIT कानपुर में? what was your main kind of activities, what you used to नहीं कैंपस में तो लाइक 3 years तक तो उस समय तक तो सोचा नहीं था कि सिविल सर्विसेज देना है या मतलब कोई एज सच ये नहीं था उस समय में। आई वॉज इन सिविल और फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन ठीक है टॉप करना है सिविल, हाँ तो टॉप करना है अपने इसमें, ठीक है बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, ठीक है अच्छा किया मैंने। बट और क्या करते other than academic और your main this thing at IIT? बाकी तो हम लोग ठीक है, वी ऑल्सो यूज टू हैव फन, जो भी उस समय में म्यूजिक, मूवीज, स्पोर्ट्स। सचिन तेंदुलकर मैं तो आज भी कहता हूँ, मतलब वी आर फ्रॉम द ईयर ऑफ राहुल द्रविड़ एंड सचिन तेंदुलकर। सो क्रिकेट वाज अ बिग लाइक टाइम पास और वो चीज़ें बहुत अच्छा, काफ़ी कुछ दोस्तों के साथ बॉन्डिंग। टू ग्रीन पार्क एंड वॉच मैचेस? हाँ जस्ट 1 or 2, क्योंकि उस समय भी बहुत ज़्यादा मैचेस
हो नहीं रहे थे, हाँ। बट वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अपने कैंपस में ही खेलते थे और काफ़ी अच्छा ये था। And then final year is when you started preparing. हाँ, फिर थर्ड ईयर के बाद जब फाइनली पेरेंट्स ने कि नहीं ठीक है, नहीं GRE नहीं और वो सारी चीज़ें नहीं, बाहर जाने का नहीं, यहीं पे रहो, तो फिर ठीक है कि उस समय है कि तैयारी करने का फिर तब जा कर के स्टार्ट हुआ। एंड देन इट टुक मी फ्यू ईयर्स और रेलवेज में पहले मैंने रेलवे ज्वाइन किया। First joined railway services. हाँ। तो railway services का कुछ did you actually do it or you were kind of just took the नहीं, कम्प्लीटली अंडर, मतलब मैं ट्रेनिंग में रहा था 1.5 ईयर मैंने रेलवे में ये किया। अच्छा किया आपने? हाँ, मगर इट वाज 1.5 ईयर 18 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अच्छा। एंड आउट ऑफ दैट जो भी मैंने रेलवेज में काफ़ी, मतलब पूरे इंडिया जो भारत दर्शन, बाद में भी हमारे इसमें भारत दर्शन होता है सर्विस में, लेकिन भारत दर्शन का उसके पहले भी एक मौका मिल गया थ्रू रेलवेज, जो कि हम लोगों ने काफ़ी ऐसे प्लेसेस, ऐसी जगह हम लोगों ने विजिट्स किए जो कि वैसे अदरवाइज So at part of the railway services training, you kind of travel yes, उधर भी across the country. अलग भारत दर्शन है, यहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे अलग। हाँ, तो अक्रॉस द कंट्री मतलब कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स और वो ट्रेनिंग के थ्रू हमने सारा काफ़ी कुछ कवर किया। And then you kind of finally बाद में फिर थोड़े समय के लिए छुट्टी लेकर के जिया सराय वहाँ पर, यहाँ पर हाँ, close दिल्ली by, में, हाँ, तो जिया सराय में जब मत्था टेका 4 महीने तब जा कर के फिर हुआ। Okay. हाँ, ओके, so this is how it is. So that was your parents' dream come true. Yes. And बाद में तो आपका भी बन गया होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि ये तो ये तो मतलब गौरव, मतलब जो कि और भी बाकी लोगों के लिए भी whoever is like listening to or doing these things, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक बार किसी भी पाथ को आपको चूज़ करना है, आप पूरा टाइम दे दो जो भी आपको टाइम देना है, बट वंस यू चूज़, वंस यू डिसाइड ऑन समथिंग, फिर तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट दोज थिंग्स। नहीं, तो IAS की प्रेप इटसेल्फ इज अ टेस्ट ऑफ परसिवरेंस, इज अ टेस्ट ऑफ वो एंट्रेंस में काफ़ी कुछ हो जाता है, व्हाट एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइफ लॉन्ग देन जर्नी आफ्टर दैट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट विल यू, उस पे आता हूँ, एक चीज़ और जो व्हाट डू यू डू अदर देन वर्क, मतलब दैट्स अ क्वेश्चन आई लाइक टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन कि काम के अलावा ऑफ कोर्स देयर इज द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। काम के अलावा देखिए, मेरे को मतलब रिलैक्सेशन के लिए अगर जो 2 चीज़ों में मैंने हॉबीज़ डेवलप की हैं, एक तो फोटोग्राफी एंड द अदर थिंग इज़ म्यूज़िक। आई लाइक, मैंने क्लासिकल भी कुछ समय सीखने की अच्छा कोशिश भी का, कुछ समय सीखा। और की बात करते हैं फोटोग्राफी कहाँ से, मतलब ये व्हेन डिड दैट स्टार्ट? दिस इज फोटोग्राफी आई वुड से कि हाँ, मेरा छोटा भाई ही इज़ सेटल्ड इन US, तो उससे सबसे पहले मैंने उसने अपने कैमरे को अपने अपग्रेड किया, तो उसने 2011 में अपना जो पहला DSLR था तो उसने दिया, तो उस DSLR के थ्रू व्हेन आई वाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, तो उस समय में ही हमारे बहुत अच्छा कैंपस हम लोग का हुआ करता था एज ए DM रेजिडेंस में भी। तो उस समय में काफ़ी बर्ड्स खुद हमारे इसमें, और मतलब काफ़ी काइंड ऑफ वेराइटीज़, ऐसी बर्ड्स जो कि कभी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो आप उसको नहीं पहचानोगे या नहीं देखोगे, तो उसको उसकी फोटोग्राफी, बटरफ्लाई रेजिडेंस इटसेल्फ वो जल्दी है भी यूपी में काफी सारे डीएम काफ़ी अच्छे हैं कॉलोनियल एंड पुराना वहाँ पे काफी। हाँ, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट बर्ड्स को उनको वॉच करना, उनको फोटोग्राफ करना, कोई फ्रूट्स खा रहे हैं उनको फोटोग्राफ करना, स्क्विरल को फोटोग्राफ करना, और उस तरह से फिर जब आपका एक बार इंटरेस्ट हो जाता है लाइक सनबर्ड, अब सनबर्ड आपके इस कॉलोनी में भी हो सकता होगा, बट यू नॉट लाइक उसको देखना या उसको पहचानना और उसको फोटोग्राफ करना, तो वो चीज़ें फिर वो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है। मतलब वो तब हाँ, फिर उसके बाद जब भी टाइम मिला तो उसके बाद आपने उसको ये चीज़ करने की कोशिश की। लाइक मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट आई हैव विजिटेड ऑल द बर्ड सेंचुरी विच वी हैव इन यूपी, और कई ऐसे बर्ड सेंचुरी हैं जहाँ पर एक बार के अलावा आप 2 बार 3 बार गए हो। फिर जो फील्ड विजिट्स का भी जो हमारे पास एज अ फूड कमिश्नर भी जब ये रहता था, तो व्हेन यू आर गोइंग टू हरदोई and when you are visiting a procurement center, then why not go to Sandila, go to like जो सांडी एक प्लेस है वहाँ पर, उसको भी देख लो। और फिर इसी तरह से हमारे कई समसपुर हैं रायबरेली में, तो वहाँ पर आप जा रहे हो, उसके थ्रू पास कर रहे हो, देयर इज अ लिटिल बिट डाइवर्जन। तो कैमरा मेरे गाड़ी में रहता था, और very good that you were able to maintain that hobby, and the work also requires you to travel, so you जब can अहमदाबाद में गया तो अहमदाबाद में जस्ट नियर टू अहमदाबाद देयर इज ए बर्ड सेंचुरी कॉल्ड थोल।
क्योंकि आपने फ्लैमिंगोज अगर देखा हो, फ्लैमिंगोज इफ़ यू हैव Yes, सीन, yes. तो बहुत लाइक इट इज़ वन ऑफ द जो हमारे यहाँ पे सारस के अलावा एक इट इज़ वन ऑफ द बिग बर्ड्स। तो उसको देखना, उसके कलर्स को देखना जब फ्लाई करते हैं एक साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज भी ख्याल है कि हाँ, थोल बर्ड सेंचुरी अहमदाबाद में मैं एक दिन के लिए गया था, बट लाइक मॉर्निंग में Took out 4 o'clock उठ करके और फिर 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, तो बहुत अच्छा था। और And the second thing you're saying is music. Music में what singing or instrumental? सिंगिंग में मैंने थोड़ी हॉबीज, मतलब पहले तो हर आदमी हमारे यहाँ पे गुनगुनाता है और वो चीज़ें करता है। नहीं, but you saying classical? यस, तो मैंने बीच में थोड़ा सा क्लासिकल भी, मतलब नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो लोग ये करते हैं उन्हें क्लासिकल बिल्कुल भी पता नहीं अगर होता है, तो मगर आप थोड़े समय में आप हारमोनियम पर प्रैक्टिस करते हो और उसको आप ये चीज़ करो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट This होता is also after coming to IS है ये पुराना? है। नहीं, आफ्टर कमिंग टू आई एस सो कुछ है, क्योंकि कई बार आपको एक टाइम होता है जिस समय कि वन इज फोकस्ड ऑन समथिंग अचीविंग देयर करियर गोल, तो उस समय में तो वो पूरी तरह से ये चीज़ था। फिर जब फैमिली भी धीरे धीरे एक बार ये चीज़ होती है, देन यू कैन टेक सम 1 hour 2 hour एवरी वीक फॉर योर सेल्फ, तो उस तरह से। Very interesting. No, it's good that you're able to maintain these hobbies alongside work, because that's what almost it becomes almost a इट इज़ meditation of. वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच हॉबीज। और अभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक सम ऑफ द फ्रेंड्स हु आर सेटल्ड आउटसाइड ऑल्सो, तब भी ये हमेशा डिस्कशन में आता है कि व्हाट वुड यू डू आफ्टर रिटायरमेंट, बिकॉज एवरी डे यू वुड लिसन कि अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग माई सेल्फ एसोसिएटेड विद गुड पीपल लाइक यू or with other who are working privately, I would also like to have because आज की डेट में for last 1 hour 1.5 years I have not visited any new bird sanctuary. I have so many in my list, in some few in Kerala, few in West Bengal. So ये चीज़ है कि आगे कम से कम उस लेवल का बना के रखना है कि आफ्टर रिटायरमेंट एटलीस्ट I have to keep these passions alive. Yeah, no, that's great. Very, very good to kind of, yeah, I completely agree with that. Lastly, a lot of the audience who will be kind of watching this are basically young professionals, you can say. Could be students, could be young professionals. Some of them are already kind of committed themselves to nation building in some way or the other, right? So either they're part of the services or they're aspiring to be in the services, or even if not part of the services, they are working in different kind of organizations outside of the system, but focused on kind of social impact on development. तो एक तो वो section है which is kind of said, okay, we want to commit our professional life to this. There's another segment which also has this internal kind of thing कि कुछ तो करना है, to contribute to nation building in some way or the other. But of course, they are also indirectly contributing. They are working in startups, they are working in kind of different organizations doing their own thing and so on. So this last segment there, जहाँ पे कहीं वो latent है, indirectly auto mode में कुछ indirect contribution हो रहा है, but they've not really committed themselves to really creating impact as a mission in life. What would be your message to them? देखिए, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, एक ये हमेशा हमें सेंस होना चाहिए कि हमें वी हैव टू गिव समथिंग बैक, जिनके कारण से भी हम लोग इस लेवल तक पहुँचे हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए। बी इट देयर योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड्स और योर इंस्टीट्यूट और योर कंट्री, ठीक है। सो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि हाँ, हमने जिन लोगों के कारण से हम यहाँ पे पहुँचे हैं उनको मैंने क्या दिया। तो मैं इसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप, ठीक है, एज यू मेंशन कि ठीक है, आप स्टार्टअप में कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सम वे और अदर you are contributing to the growth of your state or your country, but directly भी हमें कुछ ना कुछ अपना टाइम ज़रूर उसमें देना चाहिए। We have to be connected to our roots, grounded ज़रूर होना चाहिए। आज की डेट में मैं पिछले दिनों की बात है, एक बहुत नेशनल रेप्यूट के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो मैं ये मेंशन कर रहा था कि हमारे जो बच्चे होते हैं, जब जस्ट लाइक मी, यू एंड मेनी अदर्स, 17 ईयर्स के एज में जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, पैम्पर्ड माहौल से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, दे आर इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज दे आर पैम्पर्ड, दे आर ऑल्सो, और फिर उसके बाद वो सीधे मास्टर्स करने या
they fly back to, like, they not fly back, they fly to some other countries, US और जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वो देखते हैं. तो एक तो हमें ये इंश्योर करना है कि हाँ, वी हैव टू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज इन आवर स्टेट, हाउ डू वी ब्रिंग देम बैक. और दूसरा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन बच्चों को, उनको किस तरह से कनेक्टेड रखें. हम ये सोच नहीं सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी है क्या. हम लोग जब कॉन्वर्सेशन में हम जब देखते हैं कि कई बार हम अपने फ्रेंड्स को भी देखते हैं जब वो काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या इस पे, आई ऑल्सो फील यार रियलिटी क्या है वो तो थोड़ा सा आकर के नज़दीक से आकर के देख लो, जुड़ करके देख लो. सो ये चीज़ है कि लाइफ में जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप कहीं किसी फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो, यहाँ पर भी रह रहे हो, तो थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए जबकि हम ऐसे लोगों के who are not as privileged as we are, उनके साथ कनेक्ट होकर के देख सकें. और अगर कुछ भी लोगों के हमेशा ये फील करें कि हाँ हमने कितने लोगों के लाइफ में, मतलब एक तो ये चीज़ है कि जैसे आप बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी ग्रो कर रही है, इनडायरेक्टली यू आर कंट्रीब्यूटिंग, बट डायरेक्टली भी आप कंट्रीब्यूट करके देखो, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी या उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके बच्चों के एजुकेशन में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हो, so it would give you immense pleasure. And this is the time, I think this is a general spirit at this point in time कि अपना समय अब आ रहा है, आ गया है, and this is yes for the next 25 years as we are. तो जो गैप था जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग की, या जो उस समय जो गैप था, द मोस्ट डेवलप्ड नेशन एंड इंडिया के बीच में, then this gap is closing and in next 10-15 This years spirit that we can fast close that gap even more in the coming years. Yes, So अगर कुछ करना है तो this is the time to This is kind the of do. Thank you, Manoj. Thank you so much, Really Gaurav. good talking to you and hearing about all of your experience. Thank you.